हाँ। गुड मॉर्निंग जैन साहब। सर यहाँ पे एक्चुअली अभी एनपीएमयू ऑफिस में ही सारे हमारी टीम बैठी हुई है। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है, इसलिए मुझे लग रहा है हम लोग सब लोग दिख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ लैपटॉप पे ही आ रहा है। सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। आप बताएं हाउ टू गो अबाउट, क्योंकि बेसिकली द इंटायर क्यूसीआई टीम इज हियर एंड दे हैव ए स्मॉल प्रेजेंटेशन टू एक्सप्लेन कि क्या क्या कहाँ पे क्या जितने भी आपके सबमिट हुए हैं उसमें ब्रॉडली क्या क्या इश्यूज थे, जो आप लोग ऑलरेडी मेरे ख्याल से जब हमारे एनपीएमयू के लोग गए थे और क्यूसीआई के, तो ऑलरेडी वहां पे डिस्कस हो चुका है। बट उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके अभी देखने की जरूरत है। और उसके बाद हम आपसे सुनना चाहेंगे कि कहाँ पे क्या क्या इश्यूज थे जो कुछ हद तक लग रहा है कि नहीं, इसमें प्रोटोकॉल से रिलेटेड इश्यूज हैं जिसको हमको बेहतर समझना चाहिए, या ऐसी कोई इश्यूज हैं जो हमको लग रहा है कि नहीं, ग्राउंड लेवल पे सारे प्रोसेस फ्लो हुए हैं, सारे काम हुआ है, बट एट द सेम टाइम डॉक्यूमेंट पे वो प्रॉपरली रिप्रोड्यूस नहीं हो पाया। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है आप जैसा बताएं, इन केस यू वांट टू कम विद सम इंट्रोडक्शन पार्ट से आना चाहते हैं आप बताएं, अदरवाइज मैं क्यूसीआई को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेजेंटेशन अपना बताएं। जैन साहब। ठीक है। तो हम लोग अपने आप को सीमित रखते हैं कि जितने भी डब्ल्यूएसपी सबमिट हुए हैं उसमें क्या क्या इश्यूज थे, जो क्यूसीआई के प्रोटोकॉल डेस्कटॉप एनालिसिस और जो भी फील्ड एनालिसिस के बेसिस पे आया है, उसके बाद हम एक पर एक के बाद एक बात कर लेंगे। ठीक है। सो नाउ नाउ लेट हु इज गोइंग टू प्रेजेंट। ओके। सो पलास, नो, सो पलास from QCI, he will make a presentation on the issues related to desktop verification and physical verification. So Palas now. So hello everyone. Good morning. बाहर में Good morning everyone. So this is the presentation by QCI on DLI2 first round verification.
10 बज गया होगा ना। जैन साहब आवाज आ रही है आपको? जैन साहब आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ, वो थोड़ा सा थोड़ा सा इशू हो रहा है यहाँ नेटवर्क का, तो अभी दोबारा वो लगा रहे। प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट स्लाइड? हाँ, ठीक है, ठीक है, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। Sir, can I start? Okay. So good morning, everyone. This is the presentation by QCI over the first round daylight 2 verification assessment. So for the state MP. So the agenda of the state workshop is from QCI is to DLI2 verification protocol basic overview and the QCI's assessment process flow for DLI2. And from state, we expect any query related to assessment as well as process flow of preparation of community-led water security plan. So this is the first round of verification overview in which a GP in a selected block is verified to have achieved the DLI when it has had completed its WSP, including water budget in a participatory manner. So here, the components of the DLI2 are water budget, which is availability minus utilization, which gives water budget, and the water security plan, which includes supply and demand, which gives the surplus or deficit, and the committee participation, in which the committed participation meetings have to be done in order to make a water security plan which shows the inclusion of the community. So this is the DLI2 assessment procedure followed by the QCI. So once a WSP has been submitted by the state, we have first seen the declaration, which a declaration should be present and should be in a proper template. If the WSP has the declaration which qualified on in those two sub parameters, which is present as well as proper template, we have move on to next, which is resolution, in which it has four sub parameters. First of all, the resolution should be present. The second was proper template. Third was date and count to be present in the template, and it should be signed by 3/4 community members. In case if any of these sub parameters are missing in the resolution, we have not proceed further with that WSP, and the assessment has been stopped for that WSP in this step only. Suppose a WSP has qualified on these two in these four sub parameters on the resolution, then we have moved on to MOM, minutes of meeting assessment, where it should be present. It should be valid and proper MOM. And the third sub parameter is the 3/4 resolution members matching to be present in the resolution template. In case any of these parameters are missing in the MOM for a given WSP, then assessment has been stopped here itself. Else, if the WS and the MOM has qualified on these three parameters each, that we have moved on to water budget, which is completeness. The all the parameters are completed, as well as the demand side or supply side or both interventions have been mentioned in WSP. And then if the WSP is complete and demand side supply side interventions have been mentioned, then we have moved on to water budget correctness verification, where we have procured the source documents. If in the water budget completeness is not there, then the WSP has been stopped there itself, and we have not moved on to the next step. So the as on 11th of If can be possible, please speaking yes, in sir. सॉरी बीच में मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हिंदी प्लीज इन हिंदी हिंदी में सर. यस yes. सर यहाँ से या फिर आगे से हिंदी से, या इसको भी समझाना है हिंदी में? इसको भी अगर इफ कैन बी पॉसिबल संभव हो तो. ठीक है. एक WSP में जब हमारे पास में WSP आया, हमने उसका पहले डिक्लेरेशन टेम्पलेट चेक करा कि डिक्लेरेशन टेम्पलेट प्रेजेंट है और प्रॉपर टेम्पलेट में है, तो उसको हम आगे रेजोल्यूशन के लिए चेक करने गए. अगर डिक्लेरेशन एब्सेंट या प्रॉपर टेम्पलेट में नहीं है,
तो उसका असेसमेंट आगे नहीं हुआ। अगर वो डिक्लेरेशन में पास हो रहा है, प्रेजेंट मतलब वो WSP में अटैच है और प्रॉपर टेम्पलेट में है, तो रिजोल्यूशन में हमने 4 चीज़ें चेक करी उसकी, कि वो प्रेजेंट है पहला, और प्रॉपर टेम्पलेट में है, तीसरा है कि उसमें तारीख और काउंट कि कितने कमिटी मेंबर्स हैं वो टेम्पलेट में मेंशन है, जहाँ पे एक ब्लैंक में काउंट लिखा हुआ था कि कितने संख्या में कमिटी मेंबर रिजोल्यूशन में, वो मेंशन है। और हमने चेक करा कि 3/4 कमिटी मेंबर्स का सिग्नेचर भी है नीचे गिवन लिस्ट में। अगर ये चारों पास कर रहा है रेजोल्यूशन, तो हम आगे उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग में बढ़े आगे। अगर इसमें किसी एक चीज में भी वो नहीं है, कि सब जैसे 3/4 मेंबर का सिग्नेचर नहीं है, तो हम आगे उसको नहीं चेक किए, हम उस WSP को वहीं उसका असेसमेंट रोक दिया। अगर वो MOM में, हमने फिर अगर वो पास हो रहा है रेजोल्यूशन में, तो हम MOM में गए। MOM में उसका हमने चेक करा कि MOM है, वैलिड है, कि मतलब जो भी उसमें गिवन है डिस्क्रिप्शन वगैरह डिटेल, मीटिंग में क्या क्या हुआ वो अटल भूजल और वाटर सिक्योरिटी प्लान से रिलेटेड है, तो हमने उसको पास करा है। फिर हमने 3/4 मेंबर चेक करा है कि जो रेजोल्यूशन टेम्पलेट में 3/4 मेंबर के सिग्नेचर है, वो अटेंडेंस शीट जो MOM के साथ में अटैच की गई थी उसमें है कि नहीं। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है, तो हमने वहीं पे उसका असेसमेंट रोक दिया उस वाटर सिक्योरिटी प्लान का। अगर वो ये तीनों चीज़ें MOM की हैं उसमें, तो हमने उसको आगे वाटर बजट चेक करा है कि वाटर बजट में जितने भी पैरामीटर्स थे, रेनफॉल, इवापोर ट्रांसपिरेशन, ये सब कंप्लीट है। और डिमांड साइड, सप्लाई साइड, दोनों या कोई एक भी इंटरवेंशन अगर गिवन है, मतलब दिया हुआ है वाटर सिक्योरिटी प्लान में, तो हमने वाटर बजट को हम आगे बढ़ गए करेक्टनेस वेरिफिकेशन में, जिसमें कि हमने सोर्स डॉक्यूमेंट लिया था DPME ऑफिसर्स से और उसका वेरिफिकेशन किया था। अगर वाटर बजट में कंप्लीट ही नहीं है, वो कोई चीज़ ब्लैंक है उसमें, तो हम आगे नहीं, हमने सोर्स डॉक्यूमेंट पहले। अब 11 अक्टूबर 2021 जो डेडलाइन थी, उस तक हमें मध्य प्रदेश स्टेट से 189 वाटर सिक्योरिटी प्लान्स पोर्टल पे मिले, जिसका हमने असेसमेंट करा। और वाटर सिक्योरिटी प्लान जो 189 आए थे, उसमें डेस्कटॉप असेसमेंट हमारे सारे फिल्टर्स के बाद में सिर्फ 3 वाटर सिक्योरिटी प्लान ही पास हुए, जिनका हमने सोर्स डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट किया। बट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में ये रह गए, इनका स्कोर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सक्सेसफुल अकरेंस 0 हो गया इनका। और क्योंकि सोर्स मैच भी नहीं कर रहे थे WSP जो हमारे गिवन थे, हाँ, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट जो हमने कलेक्ट किया था उसमें कुछ पैरामीटर्स के जो आपने सोर्स डॉक्यूमेंट दिए थे वो मैच नहीं कर रहे थे WSP में जो गिवन था, जो हमारे पोर्टल पे जो हमें WSP मिला था। ये ब्रेकअप है कि हर जिले से कितना वाटर सिक्योरिटी प्लान रिसीव हुआ था। 189 टोटल जो हुआ, छतरपुर में 70, दमोह में 39, निवारी में 10, पन्ना में 10, सागर में 22, टीकमगढ़ से 38। अब हमारा था स्टेप 1 जिसमें हमने डिक्लेरेशन चेक करा था। तो 186 WSP में डिक्लेरेशन था, 3 में नहीं था। और तो हम 186 WSP के साथ में आगे बढ़े डिक्लेरेशन चेक करने के लिए। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप है, जिसमें कि किसका में कितना डिक्लेरेशन में पास हुआ। अब रिजोल्यूशन में आते हैं, तो 186 WSPs में से सिर्फ 67 WSPs का ही रिजोल्यूशन के बेसिस पे पास हुआ। किसी में टेम्पलेट में नहीं था, तो किसी में डेट मिसिंग था, या किसी में 3/4 सिग्नेचर नहीं थी, इसलिए वो कम होते गए 186 में से। और लास्ट में हमारे पास में सिर्फ 67 WSPs बचे जो रिजोल्यूशन के पैरामीटर पे पास हो रहे थे। अब हमने MOM का डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस करा था, जिसमें हमें 67 WSPs में से सिर्फ 6 WSPs के MOM हमें वैलिड मिले, और जो कंप्लीट थे उनके 3 पैरामीटर के हिसाब से, जो MOM के 3 पैरामीटर थे हमारे, कि प्रेजेंट है, क्वालिफाइड है मतलब डेट और कंटेंट के हिसाब से, और 3/4 सिग्नेचर भी है। तो इसमें 6 WSP ही सिर्फ पास हुए।
अब ये हमारा वेरिफिकेशन कंपोनेंट है कि अब 6 डब्ल्यूएसपी हमारे पास जो डिक्लेरेशन रेजोल्यूशन एमओएम के फिल्टर से पास हो गए, इनका हमने वाटर बजट कंप्लीटनेस चेक करा, जिसमें कि सिर्फ 3 डब्ल्यूएसपी की का ही वाटर बजट कंप्लीट था, और हमने उनका तीन और उन्हीं तीन का सप्लाई और डिमांड साइड इंटरवेंशन मेंशन था डब्ल्यूएसपी में। तो 6 में से सिर्फ 3 डब्ल्यूएसपी थे जो कंप्लीट भी थे और जिनका इंटरवेंशन भी कंप्लीट था। अब ये हमारा ऑब्जर्वेशन है जिले के हिसाब से कि रिजोल्यूशन के बेसिस पे, जैसे छतरपुर में, कि कुछ डब्ल्यूएसपी में काउंट ऑफ कमिटी मेंबर ही मिसिंग था टेम्पलेट में से रिजोल्यूशन के, या तो डेट नहीं थी, या तो तीन चौथाई कमिटी मेंबर का नाम ही लिस्ट में नहीं था, या फिर वो मैच नहीं कर रहा था जो एमओएम में था। ऐसे ही दमोह में 2 केस आए थे कि जो 3/4 नाम गिवन था रेजोल्यूशन में वो एमओएम से मैच नहीं कर रहा था, या तो 3/4 सिग्नेचर जो थी वो ही नहीं थी रेजोल्यूशन टेम्पलेट में। ऐसे ही निवारी में था कि डेट नहीं था रेजोल्यूशन में, और कमिटी का मेंबर्स का काउंट जो था वो ब्लैंक था रेजोल्यूशन टेम्पलेट में। ऐसे ही पन्ना में ये केस मिला कि 3/4 नाम जो प्रेजेंट है रेजोल्यूशन टेम्पलेट में वो एमओएम से मैच नहीं कर रहे हैं अटेंडेंस शीट से, और सागर में भी काउंट ही ब्लैंक था रेजोल्यूशन टेम्पलेट से। जो आपका टीकम का डिस्ट्रिक्ट है उसमें डेट मिसिंग थी, काउंट ब्लैंक था, और जो 3/4 नाम गिवन था रेजोल्यूशन टेम्पलेट में वो एमओएम के अटेंडेंस शीट में नहीं था या मैच नहीं कर रहा था। ये एक हमारा एक मैं एग्जांपल डाला हुआ है कि ये भरत जीपी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का है, जिसमें कि इस टेम्पलेट में ना तो डेट गिवन है और काउंट भी ब्लैंक है इसमें, इस टेम्पलेट में। ये हमने एक एग्जांपल के लिए लगाया हुआ है यहाँ पे। अब एमओएम के बेसिस हमारा ऑब्जर्वेशन है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें छतरपुर में क्या था कि जो भी एमओएम गिवन था वो या तो अटल भूजल योजना से संबंधित नहीं था, वो किसी और विषय में था, या तो एमओएम था तो उसमें अटेंडेंस, मतलब जो भी लोग उपस्थित थे अटेंडेंस नहीं था, या एमओएम ही कंप्लीटली मिसेस नहीं था, डब्ल्यूएसपी में अटैच ही नहीं था एमओएम, और या तो फिर एमओएम जो था वो एकदम ही क्लियर दूसरा था, जिसमें सेम वही केस की जो अटल भूजल से संबंधित नहीं था, जो या तो परफॉर्म है जिसमें प्रिंटेड है और वो बाकी सेम एमओएम बाकी और भी ग्राम पंचायत के जो डब्ल्यूसी सबमिट हुए थे उनसे मैच कर रहा था, और या तो रिटर्न फॉर्म में भी था एमओएम, बट वो परफॉर्मा बेसिस पे रिजेक्ट हुआ क्योंकि वो सेम रिटर्न फॉर्मेट सेम हैंडराइटिंग पूरे जीपी बाकी और किसी जीपी में लगे हुए थे। निवारी में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं मिली एमओएम से रिलेटेड, क्योंकि वो रिजोल्यूशन या डिक्लेरेशन पे डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे। पन्ना में 3/4 नाम जो रेजोल्यूशन में गिवन थे वो एमओएम से मैच नहीं कर रहे थे, ये केस मिला। सागर में एमओएम ही मिसिंग था कंप्लीटली कुछ डब्ल्यूएसपीज में, कि एमओएम अटैच में या तो एमओएम था तो उसमें अटेंडीज का नाम नहीं था कि जो लोग उपस्थित थे उनका अटेंडेंस, या तो सेम परफॉर्मा प्रिंटेड केस था जो कि बाकी और भी डब्ल्यूएसपीज में सेम पाया गया था। टीकमगढ़ में भी प्रिंटेड फॉर्मेट में परफॉर्मा गिवन था और वो बाकी ग्राम पंचायत के डब्ल्यूएसपी से मैच कर रहा था, या तो 3/4 नाम नहीं था जो रिलीजन टेम्पलेट में था, वो एमओएम के अटेंडेंस से मैच नहीं कर रहा था। ये हमारा कुछ ऑब्जर्वेशन है कि ये छतरपुर और टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मा केसेस हैं जिनके बेसिस पे डब्ल्यूएसपी रिजेक्ट हो गए हैं। ये प्रिंटेड केस है। ये एक समरी है कि 6 डब्ल्यूएसपी जो हमारे 3 फिल्टर के बाद में पास हुए, डिक्लेरेशन रेजोल्यूशन और एमओएम के बाद में, वो ये
ठीक है, ये समरी है कि जो डिक्लेरेशन रिजोल्यूशन और एमओएम के फिल्टर में से सिर्फ 6 डब्ल्यूएसपी हमारे पास हुए। उन 6 डब्ल्यूएसपी में सिर्फ 3 डब्ल्यूएसपी का वाटर बजट कंप्लीट था। अभी रहने दे, यही रहने दे। हाँ, इसमें आप देख रहे हैं कि 3 फिल्टर जो हमारे थे उनमें से 6 डब्ल्यूएसपी निकले। 6 में से 3 का ही सिर्फ वाटर बजट कंप्लीट था। बट सोर्स डॉक्यूमेंट जिनका हमने लिया 3 का, वो मैच नहीं कर रहा था, तो वाटर बजट करेक्टनेस में 0 डब्ल्यूएसपीज हो गए और फाइनल जो सक्सेसफुल अकरेंस था वो 0 था। थैंक यू। सोरा का नाम ट्राई कर नहीं सकते। जैन साहब, मेरे ख्याल से इनका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। एम आई ऑडिबल? एक तो सबसे अनुरोध है कि जो लोग बात नहीं कर रहे हैं अपना म्यूट कर लें, क्योंकि काफी डिस्टरबेंस हो रहा है। और अभी मेरे ख्याल से जहां तक मुझे समझ में आता है, ये सारी बातें रिफ्लेक्शन वर्कशॉप के दौरान भी आप लोगों से चर्चा हुई है, जब हमारे एनपीएमयू और क्यूसीआई के लोग वहां पे थे। अब एक एक करके हम ऐसा कर सकते हैं कि जहां पे फर्स्ट स्लाइड में जहां पे डिक्लेरेशन 3 जो मिसिंग है, वो 3 जो भी डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां पे मौजूद हैं, वो उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो बता दें। जो 3 डिक्लेरेशन मिसिंग है आउट ऑफ 189, वो कौन से हैं, और उसमें अगर कोई क्लैरिफिकेशन या कोई भी ऐसी चीज उसके बारे में बात करना है तो आप बताएं। I think I will request QCI, please go to the first slide in which declaration part is there. The very first slide, I think we can repeat so that we know that there are which district actually do we know that which district this 3 water security plan was there, in which declaration was not present. हाँ जी, तो अब आप देखें यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से डिक्लेरेशन है ये, हाँ 70 70 70 38। निवारी में मेरे ख्याल से एक कम हो रहा है, पन्ना में एक कम हो रहा है। सर, may I speak from Newari? I am speak IB Nayak, nodal officer. बताइए बताइए। We have submitted all the 10 declaration with dated in a prescribed format, but there is showing one missing. हिंदी में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कहना है कि आपने 10 के 10 में सबमिट किए थे? 10 के 10 हमने कलेक्टर महोदय के साइन से विद डेटेड साइन और निर्धारित प्रपत्र में सबमिट किए हैं, लेकिन इसमें 10 में से 9 शो हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या ऐसा रिकॉर्ड है राशि या जो भी है, आप लोग बताओ। हमारे पास एक सेकेंड, कौन सा ग्राम पंचायत में डिक्लेरेशन वाज मिसिंग इन नेवारी एंड द पन्ना डिस्ट्रिक्ट? इज इट पॉसिबल टू नो? नाम नहीं है सोरा। हाँ जी, हाँ, सो तो हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं अभी कि कौन सा ग्राम पंचायत निवारी, पन्ना और एक और किसमें है, और दमोह, इन तीनों में जो एक डब्ल्यूएसपी है जिसमें डिक्लेरेशन मिसिंग है। दोबारा आप भी चेक कर लो। पन्ना डीसी बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, बताएं। मैं हमारे यहाँ ग्राम पंचायत निवाड़ी से धर्मेंद्र बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, इसमें जो थोना का है वो मिसिंग है। थोना में सर, क्या ये है? मेरा एक जैन साहब, मेरा पास अनुरोध है, एक सेकंड मैं बात करूं। जैन साहब, मेरा एक अनुरोध है,
हमने आपको डिस्ट्रिक्ट बता दिया है, दामोह, निवाड़ी और पन्ना। इन तीनों में एक एक डिक्लेरेशन मिसिंग है। जो लोग उस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित वहां पे आपके डीआईपी के लोग हैं, काइंडली एक बार दोबारा चेक कर लें, क्योंकि ये चेक करके ही बताया जा रहा है आपको, या तो अपलोडिंग के टाइम में मिस हो गया या कहीं स्कैनिंग के टाइम में मिस हो गया, ये जो भी कारण रहा हो, एक बार इसको दोबारा देख लें। और अगर आपके पास वो अवेलेबल है आज के डेट में, तो उसको हम अगले से, जो भी हम अभी बातें चल रही हैं, अंत में हम ये बात कर सकते हैं कि उस अगर डिक्लेरेशन आपके पास है, किसी कारणवश आप अपलोड नहीं कर पाए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है सर मैं निवाड़ी से धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। बताइए। हेलो हाँ, सर, हमारे पास उपलब्ध है और वो गलती से शायद वो स्कैन नहीं हुआ वो हिस्सा, और यही तो मैं पीडीएफ बताने जा बनाते रहा हूँ समय ना। वो एक पीडीएफ सेकंड, बनाते समय छूट गया है। मैं यही आप हमारे लोगों पास को उपलब्ध बार है, बार थोना अनुरोध कर रहा थोना हूँ, का है सर वो। मैं यही अनुरोध कर रहा जी हूँ सर। आप लोगों को, ये जो भी देखा गया है, ये प्रत्यक्ष रूप से ये पाया गया है। अब क्या कारण है नहीं जोड़ने का या उसमें डिक्लेरेशन नहीं का, ये आप बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तीन जो डिक्लेरेशन पीडीएफ अगर बनाते आप, समय छूट गया सर वो। भाई पीडीएफ सुन तो बनाते लिया ना समय मैंने, छूट गया है तो इसीलिए तो प्रॉब्लम है ना। अब छूट गया, इसमें गलती किसकी है? जो भी कारण से छूट गया तो छूट गया, तो यहां पे तो वही पता चलेगा ना छूट गया। ये तीनों लोगों से अनुरोध है, आप एक बार दोबारा चेक कर लें, ताकि आज के मीटिंग के अंत में ये आप बता पाए कि डिक्लेरेशन आपके पास है, गलती से छूट गया, या आपके पास है ही नहीं। ये हम बाद में बात करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट, कम टू रिजोल्यूशन नाउ। सर पन्ना से बात कर रहा था सर। हाँ बताइए। सर हमारे यहाँ 10 हमने जैतूपुर का है सर, जैतूपुर का हमने अपलोड किया था सर, सिस्टम में हमने चेक भी किया था सर। यहाँ पे हमको वो डिक्लेरेशन फॉर्म दिख रहे थे सर, वो थोड़ा क्या इशू आ रहा है सर, ये समझ में थोड़ा क्लियर नहीं आप हो एक पा रहा बार है। दोबारा उसको चेक करें, हमारे सामने ये चेक हो रहा है, उसमें डिक्लेरेशन नहीं है। ठीक है, जी आप सर। बात दोबारा करा check दो कर तो लें। बताया, उससे कट गया था, इसमें ऑनलाइन था ना। आप दोबारा एक बार मैं- चेक कर लो। मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ सर। हाँ, एक बार उसको मैंने वैसे एक बार चेक किया था सर वो मीटिंग के बाद, लेकिन फिर हेलो। चेक कर लेता हूँ। हाँ सर, मैं टीकमगढ़ से बोल रहा हूँ सर। 39 हमने जमा किए थे और इसमें 3800 हो रहा है, ये किसी जिले में मिक्स हो गया है। ये है ना 8 बजे करीब उसमें आया था, मैंने देखा था। हेलो। 35 था, 635। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हाँ जी, टीकमगढ़ में 39 सबमिट किए गए, लेकिन 38 आ रहे हैं इसमें। एक किसी जिले में क्यों काउंट 189 पूरा हो रहा है। मेरी हाँ। उसमें ऑनलाइन चल रही थी तो डिस्कनेक्ट नहीं ये शायद सागर के बढ़ गया होगा, शायद सागर के 21 थे, आ रहा है क्या तुम? चलो ये सागर में हम 22 दोबारा थे। हाँ, गुड मॉर्निंग। अच्छा अच्छा। हेलो। एक करके हाँ। बात करें जरा सा प्लीज। हाँ, मैं सागर से बोल रहा हूँ सर। हाँ बताएं। हाँ सर, इसमें 21 सबमिट किए हैं, एक नंबर इसमें बढ़ा हुआ है सर। अच्छा सर, ठीक ये है, वो हम टीकमगढ़ दोबारा का है। चेक कर लें। टीकमगढ़ में 39 है सर। ठीक है, वो दोबारा हम चेक कर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सबमिट किए हैं, वो सारे डिक्लेरेशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए इतना डिस्प्यूट नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा ठीक सर। हाँ जी। अब हम रिजोल्यूशन पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, तो रिजोल्यूशन में जैसा आपको पता है, 4 चीजें उसमें चेक की गई हैं। क्या रिजोल्यूशन है नहीं है, पहला चीज। दूसरा, क्या जो टेम्पलेट हमने आपको सर्कुलेट किया था उसी टेम्पलेट में ये हुआ है या नहीं। तीसरा, क्या उसमें डेट प्रेजेंट है। और चौथा, क्या 3/4 सिग्नेचर काउंट के हिसाब से उसमें है या नहीं है। अब आप देख रहे हैं यहां पे छतरपुर में लास्ट में आके 70 से और ये 23 हो जाता है। 70 से पहले 68 होता है, यानी कि सेम टेम्पलेट आपने फॉलो नहीं किया 2 में। डेट प्रेजेंट सिर्फ 60 में है, यानी कि 8 यानी 10 में आपने डेट ही नहीं डाला है। और उसके अलावा 3/4 सिग्नेचर जो है 60 में से सिर्फ 23 में है। अब छतरपुर के जो भी पदाधिकारी हैं यहाँ पे, डीपीएमयू के लोग,
डीपीएमयू पहले ये रिस्पॉन्ड करके मुझे बताया कि ऐसी क्या विडंबना हो गई और क्या प्रॉब्लम हो गया कि आपने साइन करते समय डिक्लेरेशन ये नहीं देखा कि उसमें डेट प्रेजेंट नहीं है या 3/4 सिग्नेचर नहीं है, वेदर ये चेक हुआ था या नहीं हुआ था। टीपीएमयू के जो नोडल ऑफिसर हैं वहां पे काइंडली वो रिस्पॉन्ड करें इस पे। हाँ जी, मिश्रा जी। हाँ जी, और एक मिश्रा जी का माइक बार बार ऑन हो रहा है, काइंडली जो भी इससे संबंधित जिनका भी ये लिंक है वो काइंडली म्यूट कर दें। हाँ तिवारी जी बताएं। अगर कोई सफाई आप देना चाहते हैं तो जरूर बताएं, क्योंकि डीपीएमयू का ऑफिसर अगर इसमें सिग्नेचर करता है डिक्लेरेशन में, उसका ये मतलब होता है कि उसने प्रॉपरली रिजोल्यूशन को चेक करा है, उसने बजट भी देखा हुआ है और उसने एमओएम भी देखा हुआ है। इसलिए ये जिम्मेदारी डीपीएमयू डिक्लेरेशन में दी गई थी। जिम्मेवारी डीपीएमयू की भी है और डीआईपी की भी है। ओपी तिवारी दिख तो रहे हैं यहाँ पे, मतलब जहां पे वो पार्टिसिपेंट हैं वहां पे आ रहे हैं। अगर डीपीएमयू में तिवारी जी नहीं है और कोई जवाब दे सकता है? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, निवेदन ये है कि 70 WSP एक साथ में हमारे पास सबमिट किए गए हैं और हाँ। समय हमारे पास चेक करने का उतना नहीं, कुछ हमने चेक किए हैं और कुछ चेक नहीं कर पाए, जिसके कारण से ये त्रुटि हुई है। भविष्य में इसका ख्याल रखेंगे, इसको और पहले से ही क्रमबद्ध तरीके से इसको चेक करके ही सबमिट किया करेंगे। नहीं तिवारी जी, मेरा एक अनुरोध है, देखिए आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये पूरे प्रोसेस में एक छोटी सी गलती के चलते हम लोग कहां से कहां पहुंच गए आज के डेट में। 70 में से अगर रिजोल्यूशन जैसा चीज जो एक सिर्फ मियर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 3 चीज देखना है, सिग्नेचर है या नहीं, डेट है या, और रिजोल्यूशन का टेम्पलेट फॉलो नहीं हुआ, अगर हम ये देख नहीं सकते हैं तो मुझे लग रहा है आगे जाके और भी हमें परेशानी बढ़ने वाली है। आप सोचो ये सारा प्रोसेस क्यूसीआई का 1 महीना गया, हमारा 1 महीना गया और अल्टीमेटली वी एंडेड विद नथिंग। तो प्लीज मेरा बार बार आपसे अनुरोध है, इस तरह की गलतियां जो डॉक्यूमेंट में होनी है उसको अवॉइड किया जाए, और डीआईपी कंसर्न जो वहां पे है उनसे भी मेरा अनुरोध है, कोई भी ऐसा हाफ कुक्ड मटेरियल कभी भी डीपीएमयू को ना दिया। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अगर 3/4 सिग्नेचर उसमें नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि उसमें डेट जहां पे नहीं है वो तो मैं मान सकता हूं कि डेट को किसी तरह से आप वहां पे लिखा जा सकता है। अगर आप मुझे बताएं 3/4 अगर सिग्नेचर नहीं है जितने वहां के कमिटी मेंबर के हिसाब से, तो इसका जिम्मेवारी क्या होगा और ये कैसे इसको इस त्रुटि को दोबारा ठीक किया जा सकता है। इसका मतलब है कि बिना दोबारा मीटिंग किए हुए ये काम तो ठीक नहीं हो सकता है। डीपीएमयू और जैन साहब दोनों से मेरा अनुरोध है कि जिसमें 3/4 सिग्नेचर नहीं है, काउंट नहीं है या डेट नहीं है, ये तो एडिटेबल चीजें हैं, लेकिन अगर सिग्नेचर नहीं है तो इसके लिए आपको रिविजिट करना पड़ेगा ग्राम पंचायत में और दोबारा मीटिंग करना पड़ेगा। अब इसके बारे में आप जो भी बताना चाहते हैं क्लियर कट बताएं मुझे। समय आप सबों को मालूम है कि 15 जनवरी, अभी ये हमने आपको ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया है बट मैं आपको अंदाजा दे रहा हूं, 15 जनवरी अगला डेट होने जा रहा है जिसमें ये सारे 189 जितने भी आपके WSPs हैं उसमें आपको या तो एडिटेबल करेक्शन करने हैं
या ग्राउंड में जाके रिविजिट करना है, चाहे वो वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाने का प्रोसेस में कमी हो, चाहे वो कम्युनिटी इंगेजमेंट के प्रोसेस में कमी हो। ठीक है, तो जैन साहब हाँ बताएं, आप बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ हाँ, सर वो जैन साहब वो हम लोगों को बिल्कुल आइडिया है और बिल्कुल पता है मुझे, बट सॉल्यूशन आप खुद बताएं कि जहां पे 3-4 सिग्नेचर ग्राम पंचायत के या उस कमेटी के लोगों का नहीं है, उसके लिए आपके तरफ से मैं सॉल्यूशन सुनना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले राउंड ऑफ वेरिफिकेशन में उतने ग्राम पंचायत जिनका 3-4 सिग्नेचर नहीं है, उनको आपको इस वाले अगले ग्राम वेरिफिकेशन में वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, राइट? ओके, सो आई थिंक वी हैव ए क्लैरिटी नाउ। हमारे पास ये निष्कर्ष हम निकल रहा है कि जिन वाटर सिक्योरिटी प्लान में हमारा रखा है डेट या काउंट का इशू है, उसको तो आप एक बार दोबारा रिविजिट करके और एक आंकड़ा निकालने की कितने ऐसे, अब मैं डीआईपीस को अनुरोध करूंगा, आप अपने अपने डब्ल्यूएसपी को, अब आपको पता है कि छतरपुर में 70 में से सिर्फ 23 ऐसे हैं जिसमें कि 3-4 सिग्नेचर के बेसिस पे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो सारे डीपीएमईओ और डीआईपीस कंसर्न से मेरा अनुरोध है, आप दोबारा उसको 1 वीक के भीतर दोबारा रिविजिट करें और आप कैटेगरी बना के मुझे बताएं कि कितने ऐसे डब्ल्यूएसपी हैं जिसमें से बिना मीटिंग के कोई उपाय नहीं है। ये आपका काम है बताने का, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? कितने डीपीएमयू के लोग हैं और जैन साहब से खास करके एसपीएमयू के जो पदाधिकारी हैं वहां पे, उनसे अनुरोध है, क्या ये बात समझ में आ रही है हमें? जी सर। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप में आपको इनको रिविजिट करना है और हमें ये बताना है आपको, हम भी कोशिश कर रहे हैं ये, कि इसमें से कितने ऐसे डब्ल्यूएसपीज हैं जिसमें कि बिना ग्राउंड में रीमीटिंग किए हुए उसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे चले हम। और इस बार काइंडली आप लोग ये चारों चीज चेक कर लें, टेम्पलेट सही है या नहीं है, डेट है या नहीं है, और 3-4 सिग्नेचर है या नहीं है। ठीक है, आप अगर बोले तो हम लोग आगे चल सकते हैं। सर पन्ना से एक है शेष, हाँ, वो कंप्लीट है सर, उसको हम एक बार चेक करके, वो सारी जो फॉर्मेट में बता रहे हैं सर, सारे फॉर्मेट में है और उसमें सारी चीजें मेंशन है सर, वो खाली हमको रीचेक करके अपलोड करना है। अपलोड है ही, उसको एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं सर, वो हो जाएगा। 9 मेरे हैं सर, एक मैं जो देख रहा हूँ, पन्ना एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें रिजोल्यूशन के बेसिस पे कोई फिल्टर नहीं हुआ है। सारे के सारे आपके रिजोल्यूशन टेम्पलेट में भी है, डेट भी है, रिजोल्यूशन में सही है और 3-4 सिग्नेचर भी है। तो पन्ना को इस मामले में, रिजोल्यूशन के मामले में रिविजिट करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट को जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आगे अभी इसके बाद नेक्स्ट फिल्टर पे हम जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो डिक्लेरेशन और रिजोल्यूशन में कोई अगर क्लैरिफिकेशन आपको दोबारा चाहिए तो काइंडली दोबारा ये बात को आप क्लैरिफाई कर लें। नाउ
सबसे जो अहम चीज है, जहां पे सबसे ज्यादा ड्रॉप हुआ है या सबसे ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, वो है मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में 3 चीजें देखी गई हैं। पहला चीज, क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग प्रेजेंट है? क्या वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग 2 चीजों के बेसिस पे क्वालिफाई कर रहा है। एक, कि क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग में डेट है, और क्या उसका कंटेंट, यानी कि उसका जो मिनट्स ऑफ मीटिंग का जो प्रोसीडिंग्स नोट हुआ है उसमें वो रेलेवेंट बातें लिखी हुई हैं या नहीं, जो वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाने के लिए जरूरी होती है। ठीक है। अब यहां पे एक चीज बड़ी मार्के की चीज है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो छतरपुर में 21 थे, 21 में प्रेजेंट थे। ये कितने में से है? 21 70 में से नहीं। Just come before resolution, this previous one. On the resolution, how much qualified in Chhatarpur? बंद करूं। 23। तो 23 छतरपुर में जो 23 जो रिजोल्यूशन के बाद फिल्टर होके आए, उसमें से 21 में मिनट्स ऑफ द मीटिंग प्रेजेंट थे। मैं एक डिस्ट्रिक्ट को लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड आ जाओ। 23 में से 21 में मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रेजेंट थे, लेकिन उसमें से 17 ऐसे थे जिसमें कि डेट और कंटेंट के हिसाब से वो क्वालिफाई कर रहे थे। ठीक है। इस बारे में अगर किसी को, क्योंकि मैं देख रहा हूं सागर, टीकमगढ़, इनमें ये इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे वो 0 हो रहे हैं, तो आप काइंडली एक बार अपने आप को समझने का कोशिश करो, और जो सक्सेसफुल है उनके WSP को जरूर देखो। आप इसमें इस पर्टिकुलर मुद्दे पे जो भी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, QCI की टीम बैठी है यहाँ पे, हम लोग सारे एक्सपर्ट्स NPMU NTSA के बैठे हुए हैं, आप प्लीज क्लैरिफाई कर लें। दोबारा मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, दोबारा ये गलती शायद हम करने के स्थिति में नहीं रहेंगे, हम वी कैन नॉट अफोर्ड। तो आप प्लीज जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एक बार क्लैरिफाई कर लें। कामों में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। MOM है, लेकिन उसमें से सिर्फ 17, करीब 50-52% जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि उसका कंटेंट या डेट नहीं है। क्या प्रॉब्लम होता है इसमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बात। कोई DIP या कोई DPMU के लोग बता सकते हैं इसमें दिक्कत कहां पे है। अगर कोई समझने में दिक्कत है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो इसलिए आपको ध्यान होगा, हमने आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग का कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं दिया, क्योंकि ये एक लोकल फिनोमेना होता है जिसमें जो भी डिस्कशन होता है उसका प्रोसीडिंग नोट किया जाता है। हमने सिर्फ आपको अटेंडेंस का एक शीट लगाने को दिया था, जिसका एक टेम्पलेट हमने आपसे शेयर किया था। तो अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि ऐसी क्या परेशानी हो गई कि ये पूरे MOM के बेसिस पे, मतलब करीब करीब मुझे लग रहा है कितना फिल्टर हो गया, बहुत सारे 65 से सीधे 6 पे आ गए हम। 10% सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं, 90% आपके जो WSPs हैं वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं MOM के बेसिस पे। प्लीज आप जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए आप रिपीटेडली पूछ सकते हैं हमसे, बताएं। सर मैं छतरपुर संदीप पर निवेदन कर रहा हूँ। हाँ जी बताएं। सर निवेदन ये है कि हमारे यहाँ जो MOM बनाते, मतलब MP में जितने भी जिले हैं वहाँ पे MOM जो तैयार करता है वो वॉलंटियर तैयार करता है। वॉलंटियर को हमने ट्रेनिंग भी दे दी है, लेकिन फिर भी वो इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ है कि MOM को कैसे लिखा जाए और पूरी मीटिंग उसमें रिफ्लेक्ट हो। तो हम बार बार कोशिश कर रहे हैं उनको बताने की, मतलब कि MOM प्रॉपरली बने, ताकि जो एक्टिविटीज वहाँ दिन भर चली है उसका उसमें दिखे कि हाँ ये मीटिंग में MOM में ये चीज हुई है। तो ये एक फैक्टर ये हो सकता है सर। नहीं, एक सेकेंड, ये आपने बताया कि ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग किस मीटिंग का है? ये एक सेकेंड, ये वो मीटिंग का है, ग्राम पंचायत मीटिंग का, जिसमें रिजोल्यूशन भी पास हुआ है। हाँ जी, उसी मीटिंग की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये वॉलंटियर कौन है जो इसको नोट करता है? वहाँ सर पंचायत लेवल पे हमारा वॉलंटियर है ना, एक DIP के तरफ से जो काम करता है वो मतलब नोट करता है। एक सेकंड, हाँ, मतलब वो DIP का लोग है ना वो?
हाँ, डीआईपी के लोग हैं, वो उनको क्या है, उतना वो एजुकेट नहीं रहता बंदा, क्योंकि उसी पंचायत का रहता है वो, तो उनको हमने 1-2 ट्रेनिंग दे दी है, लेकिन फिर भी उनको क्या है और ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि गलतियां उसी लेवल पे हो रही। सर, हमें बता दिया है कि मीटिंग ऐसे ऐसे करना है, उसमें ये चीज लिखना है, कितने लोगों ने पक्ष में बात करी उस मुद्दे पे, मुद्दा फिर निष्कर्ष क्या निकला है, पूरा बताया गया उनको, लेकिन फिर भी क्या है, वो लोकल बंदे हैं, थोड़ा उतना एक्सपर्ट नहीं रहते हैं वो लोग। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के बिहाफ में बोल रहे हैं? मैं छतरपुर से बोल रहा हूँ सर, आईसी एक्सपर्ट संदीप सोनी। अच्छा जी, सोनी जी। सोनी जी, ऐसा है आपके यहाँ तो मैं देख रहा हूं कि 21 में से 17 लोगों ने इसके बेसिस पे क्वालिफाई कर लिया। जी तो आपके यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं। प्रॉब्लम जी जी। जहां है वहां पे वहां के डिस्ट्रिक्ट के लोग बताएं, सागर और टीकमगढ़ के लोग, जिनका एक भी क्वालिफाई नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे। आपने तो 17 क्वालिफाई किया, तो आपको मालूम होगा कि मैंने जिसमें क्वालिफाई हुआ है उसमें क्या कंटेंट है और जो नहीं क्वालिफाई है उसमें क्या डिफरेंस है। ये किसी को जी। बताने की जरूरत नहीं, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। मैं ओके ओके। सुनना चाहता हूं सागर और टीकमगढ़ के डीपीएमयू और डीआईपी से। सर टीकमगढ़ से बोल रहा हूँ सर, जो फॉर्मेट दिए गए तो वो बाकायदे भर के लगाए गए हैं। कौन से MOM का फॉर्मेट दिए गए आपको? जो किसने ठहराव दिया प्रस्ताव में जो पहले दिखाया गया जिसमें वाटर बजट वगैरह है, एक सेकेंड, ये फॉर्मेट किसने दिया आपको, पहले ये बताओ। जो बनाया गया था वो सभी में कॉमन लगा हुआ है। सबसे पहला बात तो जैन साहब और सारे एसपीएमयू डीपीएमयू को लोगों को मैं अनुरोध कर रहा हूं, सर कॉमन फॉर्मेट मिनट्स ऑफ द मीटिंग का अवॉइड करें प्लीज, क्योंकि सारे ग्राम पंचायत के मुद्दे एक नहीं हो सकते, मुद्दे अलग अलग ही होते हैं। तो कॉमन फॉर्मेट जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें आप लोग। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मुद्दे बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग एक ऐसा चीज होता है जो प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड होता है। तो काइंडली इस फॉर्मेट को अगर आप लेके चलेंगे तो आपके लिए आगे भी परेशानी हो सकती है। कॉमन फॉर्मेट को यूज ना करें प्लीज। कंटेंट जो है और फॉर्मेट भी हो सकता है बट कंटेंट तो कभी कॉमन नहीं हो सकता ना। आपके यहां कंटेंट कॉमन है, सब में वही चीज लिखा हुआ है। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग एक आप बात समझने की कोशिश करें। हमको जहां तक समझ में आ रहा है, मैं आप लोगों से कई बार वार्तालाप भी किया हूं, फील्ड में भी किया हूं आपके साथ, जहां तक मुझे समझ में आया है आप लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काफी सारे एक्टिविटीज भी करे हैं, लोगों को सेंसिटाइज भी करा है। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्यों हम रिकॉर्ड इसको डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं, वो इसलिए देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि आम आदमी उस पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व था। ये तो फोटो देख के तो कोई नहीं समझ सकता ना। तो इसके लिए हम लोगों ने बोला कि भाई एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हाँ कॉमन लोग भी इन सारे प्रोसीडिंग्स में, इन वार्तालाप में इन्वॉल्व थे, राइट। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग को सरल तरीके से बनाएं, पॉइंटेड बनाएं, बट कॉमन फॉर्मेट को अवॉइड करें, थोड़ा कंटेंट कॉमन ना करें प्लीज। थोड़ा सा एसपीएमयू के तरफ से भी एक प्रॉपर डायरेक्शन जाना चाहिए। मुझे लग रहा है जैन साहब थोड़ा आप अपने लेवल पे भी इनको एक बार चाहें तो ब्रीफ कर दें, और जो सक्सेसफुल हुए हैं वो एक दूसरे से शेयर कर लें कि हाँ भाई इस तरह से बनता है ये, ठीक है। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग मैक्सिमम फिल्ट्रेशन यहीं पे हुआ है, इसलिए प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। दूसरा जो लास्ट फिल्टर है इसका, आप ये मुझे ग्राउंड सिचुएशन बताएं कि 3/4 रिजोल्यूशन में जो लोगों ने साइन किया वो कमिटी के मेंबर हैं, क्या वही 3/4 आदमी आपके मिनट्स ऑफ द मीटिंग में भी है, होने की संभावना है या नहीं है? ये 3 चीज मुझे बता सकते हैं आप। क्योंकि मैक्सिमम इस पूरे प्रोसेस में जो फिल्टर हुआ है वो यहीं पे हुआ है कि 3/4 आदमी जिन्होंने रिजोल्यूशन में साइन किया वो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी या पीजीडब्ल्यूएम कमिटी के मेंबर हैं। क्या उसी मीटिंग में जो मिनट्स बताया गया उसमें उनको साइन करने में क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत आ रही थी इसमें? क्या ये प्रैक्टिकली दिक्कत हो रहा है कहीं?
बताएं। नहीं, जो तदर्थ समिति बनी है उन्हीं लोगों ने साइन किए हैं संकल्प में, वही लोग कर रहे हैं। बट ऐसा दिख तो नहीं रहा। नहीं है 36 में उस 17 लोगों ने सब चीज में क्वालिफाई कर लिया, लेकिन जब इसको मिलाया गया कि 3/4 मेंबर जो हैं जिन्होंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में साइन किया है और रिजोल्यूशन में साइन किया है वो कॉमन नहीं है। इसका क्या मतलब हम समझे आपसे? उसमें एक समस्या होती है, जब उसका ग्राम सभा में अनुमोदन होता है तो कई बार समिति के लोग नहीं आ सकते हैं, तो दूसरे लोग जो आ गए हैं वो लोग साइन कर देते हैं, ये होता है। जैसे तदर्थ समिति में जितने लोग हैं वो जरूरी नहीं कि वो सभी लोग अनुमोदन के समय आ जाए ग्राम सभा में, तो इसलिए अगर उन लोगों ने साइन किए हुए तो वो वैध है। एक सेकेंड यही पे मैं समझना चाह रहा हूं। ये आप मुझे बताएं कि जो अंतिम मीटिंग, आपको याद होगा हमारा जो प्रोटोकॉल था, हमने शुरू में प्रोटोकॉल में बोला था कि कम से कम 3 मीटिंग होना चाहिए। ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए और एक ग्राम पंचायत की मीटिंग। अगर आपके यहाँ 4 गांव है तो ग्राम सभा की मीटिंग अलग होगी और ग्राम पंचायत के मीटिंग में ये रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। ठीक है, यही करार हुआ था। बाद में हाँ, ये कोविड को ध्यान में रखते हुए हमने ये कंडीशन को रिलैक्स किया। हमने बोला कि ठीक है, अभी अगर ग्राम सभा लेवल पे मीटिंग नहीं हो सकती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सिर्फ एक ग्राम पंचायत लेवल पे मीटिंग करेंगे जिसमें वो सारी बातें भी डिस्कस होंगी और उसमें कमिटी के मेंबर भी रहेंगे और जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ग्राम सभा के या जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं गांव के वो भी रहेंगे। उसी में रिजोल्यूशन भी पास होगा और उसी का मिनट्स भी बटेगा। तो फिर आपकी बात को यहाँ पे मतलब कमेंसुरेट नहीं कर रहा है एक दूसरे से। अगर वो कमिटी के मेंबर उसी मीटिंग में दौरान प्रेजेंट थे तो 3/4 सिग्नेचर क्यों नहीं मैच करेगा? आप बताएं मुझे, या आपका प्रोसेस अलग था? सर पन्ना से बात कर रहा था सर। हाँ बताइए सर इसमें ग्राउंड रियलिटी थोड़ा सा सर आपको अवगत कराना चाह रहा था सर मैं। हाँ बिल्कुल बताएं। होता क्या है सर कि हम लोग जैसे सर कोई मीटिंग अरेंज करते हैं, मतलब ग्राम पंचायत स्तर पे करते हैं सर लोगों के साथ। अब वो जो तदर्थ समितियां बनी हैं सर उनको भी हम लोग इनवाइट करते हैं सर। वो जो तदर्थ समितियां हैं सर एक्चुअली में वो मतलब उनको इकट्ठा करना यार सर वो फंक्शनल पहले से नहीं थी सर, अभी उस पे काम होमवर्क शुरू हुआ है सर और वो थोड़ा सा एक्टिव थोड़ा शुरू हो गई है एक्टिव होना। बट सर ये जब हम लोगों ने उस समय प्रेजेंट समय में जब हम लोगों का इनिशियल स्टेज पे माने पहले चरण पे हम लोगों का काम था, उस समय सर ये छोटी मोटी सर वो जो है इशू आ रहे थे सर। वहां तदर्थ समितियों के लोगों को हम लोग बाकायदे एजेंडा घुमवाते थे, उनको मुनादी कराते थे, उनके घर भेजते थे रजिस्टर। बट उसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं सर और कुछ पुरुष हैं सर, वो अलग अलग कामों में जुड़े हुए हैं। जैसे सर सरपंच है, उसमें सेक्रेटरी को भी रखा गया सर उसमें। तो उसमें जब उसको हम सर देखें कैटेगरी वाइज देखेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं सर जो मजदूर वर्ग से भी जुड़े हुए हैं सर, वो लोग काम करने के लिए चले जाते थे सर। तो इसलिए सर वो जो 3/4 भाग की बात की जा रही सर, शायद उसमें से उसको हम फुलफिल करने में सर थोड़ा सा मतलब जितना वो होना चाहिए सर उसको हम नहीं कर पा रहे थे सर। तो इसमें निवेदन ये था सर कि थोड़ा सा सर इसमें छूट दिया जाए सर। ये मतलब एक आदमी को सर 2 बार मीटिंग में बुलाना पड़ रहा है, मीटिंग में भी उसको बुलाए सर, उसको जब संकल्प पारित हो तब भी वो आदमी रहे। तो थोड़ा सा सर इसमें छूट जहाँ भी बात आनंद जी, सर आनंद जी मैं यही समझना चाह रहा हूँ। हम लोगों के जहन में ये बात आती है कि जब हमने एक मीटिंग की बात की, उस मीटिंग में रिजोल्यूशन, आपके यहाँ एक बात पता है बताएं, ये कमिटी कौन सी है जिसको ये जिम्मेवारी दिया गया है? पन्ना की बात करें। हाँ जी सर, कौन सी कमिटी है जिसको अटल भूजल योजना के ग्राम पंचायत वाइज WSP बनाने की जिम्मेवारी दी गई है? सर एक तो तदर्थ समितियां सर पहले से बनी हुई हैं सर, गवर्नमेंट में पहले से उसको आरडी रन करता है सर। ये क्या विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी है? जी यस सर जी सर। एक सेकेंड, अब आप सुन लें। अब अगर मैं जो समझ रहा हूं, अगर मैंने एक ग्राम पंचायत की मीटिंग पारित की कि हाँ भाई फलाने दिन एक मीटिंग होगा जिसमें रिजोल्यूशन भी पारित होना है और मीटिंग में सारे मुद्दे डिस्कस करने हैं जो हम लोग ऑलरेडी वाटर सिक्योरिटी प्लान बना चुके हैं, उसमें डिस्कस करके उसको पास होना है। ठीक है, अगर उस मीटिंग में वो सारे उस कमिटी के पदाधिकारी मौजूद हैं
तो सर फिर अलग अलग मीटिंग के बात क्यों हो रही है? इसका मतलब आपने क्या रिजोल्यूशन अलग साइन कराया है और एमओएम किसी और दिन का? क्या ये सही है? हाँ, ये सही है सर, ये सही है सर। तो फिर ये तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। हमने आपको ये बोला था कि जो लास्ट मीटिंग है जिसमें रिजोल्यूशन पास हो रहा है उसका सर मिनट्स ऑफ द मीटिंग लगाएं ताकि वो कॉमन लोग उसमें साइन कर पाए। जी अगर ये सर। प्रोसेस अलग हुआ है तो ये परेशानी इसलिए ज्यादातर आ रही है आपको। हाँ सर, फिर यही है सर, यही है सर। तो ऐसा ना करें ना। फिर देखिए दिक्कत वाली बात क्या है, हम प्रोसेस को समझ लें। अगर हमने बोला एक मीटिंग करना है, आप उससे पहले 5 मीटिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राम जी सभा सर। कर लो, आप कमिटी की मीटिंग कर लो, वो मीटिंग भी करो आप, उसका भी मिनट्स लगाओ। लेकिन हमने आपको बोला कि जो डब्ल्यूएसपी है उसके साथ सिर्फ एक मिनट्स लगाना है जिसमें रिजोल्यूशन पारित किया गया है और उसी मीटिंग में क्या क्या बातें डिस्कस हुई है। अगर ये मीटिंग कॉमन हुआ है तो फिर तो ये जी सर। प्रश्न ही नहीं उठता कि वो लोग आए नहीं या वो लोग हाँ, साइन नहीं। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर ये प्रोसेस समझ में आ रहा, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है आगे? ये सर क्लियर नहीं था सर, जो अभी आप बोल रहे थे सर, ये क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो गया सर। हमने तो बड़ा रिपीटेडली देखो आपको बताया है। हमने जो थोड़ी सी इसमें मोहलत दी गई कि भाई 3 मीटिंग नहीं हो सकता है, आप लोगों ने भी बोला है सर कोविड का समय है, ग्राम पंचायत पे नहीं हो सकता है, तो हमने ये बोला कि सिर्फ एक मीटिंग मैंडेटरी करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं मैं बोल रहा आप बाकी मीटिंग ना करो और उसी का मिनट्स लगाओ इसमें। अगर ये समझने में प्रॉब्लम हुई थी तो फिर इसको तो किसी ना किसी तरह से समझना पड़ेगा। और जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा मेरे से पूछ सकते, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के लोग। एक चीज बता दूं यहाँ पे, इसमें हमने अभी भी वुमेन पार्टिसिपेशन की बात नहीं की है। काइंडली इंश्योर कि वो जो कमिटी साइन कर रही है और जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हो रहा है उसमें 20% महिलाएं मौजूद हैं। ठीक है, ये सर क्लियर है सारे लोगों को? एसपीएमयू, डीपीएमयू और डीआईपी के लोग कृपया करके, इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन यहीं पे हुआ है, तो कृपया करके इसको बताएं क्या ये कंडीशन आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी अगला मीटिंग नहीं हो सकता वो मैं समझ रहा हूं क्योंकि वहां पे आचार संहिता लगा हुआ है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो मुझे प्रोसेस के बारे में बताया, ये क्लियर है या नहीं है? जैन साहब आपसे अनुरोध है सर, आप थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हाँ हाँ प्लीज आगे बोलिए, आगे बोलिए। हाँ। जी
एक चीज जैन साहब मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं यहाँ पे, अगर एक ग्राम पंचायत में 5 विलेज हैं, यानी कि 5 ग्राम सभा है, हम किसी भी कीमत पे ये नहीं बोल रहे हैं कि ग्राम सभा का मीटिंग आप न करो। आप बिल्कुल, अगर आपको सहूलियत है, आप जा सकते हैं तो ग्राम सभा में लोगों, क्योंकि अवेयरनेस तो यही है, लेकिन आज तक का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जिस मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होगा उसका मिनट्स लगाना है। एक चीज, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे पास और भी 2-3 मीटिंग है जिसमें हमने वहां के ग्राउंड वाटर से रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा है, लोगों के ओपिनियन लिए हैं, वुमेन का भी हमने ओपिनियन लिया है, आप उसके मिनट को भी लास्ट वाले में अटैच कर सकते हो एज ए एनेक्सर, ठीक है, ताकि कल को जब उसका कंटेंट देखा जाएगा तो जो भी देखने वाले लोग हैं, चाहे वो QCI के लोग हों, चाहे हम लोग NPMU के लोग हों, उनको ये पता चलेगा कि यस, ये लास्ट मीटिंग में जिसमें रिजोल्यूशन पास हुआ, उसके अलावा भी मीटिंग हुई है जिसमें ये बातें हुई हैं। तो कम से कम कंटेंट पे कोई भी MOM आपका फेल नहीं करेगा कभी भी, ये मेरा सुझाव है, ठीक है। लेकिन लास्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग में 3/4 मेंबर मिनट्स ऑफ द मीटिंग में और रिजोल्यूशन में मिलने चाहिए, 20% वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये सब अपने जहन में गांठ बांध करके आप बिठा लें, अगली बार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं ये समझता हूं, आप इतना चिंता की बात नहीं है, अगले 6 महीने में मुझे लग रहा है MP में जिस तरह से आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो आप लोगों से संबंधित रहा हूं, अगले 6 महीने के भीतर आप सारा WSP बना के हमारे सामने प्रस्तुत कर देंगे। ये मेरा अपना बिलीव है, क्योंकि आप लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काफी अच्छा काम करा हुआ है, ठीक है। तो सर पन्ना से निवेदन कर रहा था सर। नमस्कार सर। हाँ बताएं सर अभी जो हम ये WSP बना रहे हैं सर, इसमें 3 मीटिंग हो रही है सर, अभी हम ठीक लोग है। कर रहे हैं। एक मीटिंग में मेल सब सर, तो तीन मीटिंग हो रही है। पहला मीटिंग क्या है? पहली मीटिंग सर उसमें जो है गांव के लोग रहते हैं सर, जो मतलब वहाँ के मतलब स्टेक होल्डर्स होते हैं या वहाँ के वंचित वर्ग के समूह के, वो एक लिस्ट आई है सर, उसके हिसाब से उसके नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए सर एक मीटिंग हम लोग वो करते हैं सर। उस मीटिंग में ही एक सेकंड सर, ये मीटिंग किस स्तर पे होती है? ग्राम सभा ये स्तर सर- पे? नहीं सर, ग्राम सभा तो लास्ट वाला है सर। अच्छा सर ये एक मीटिंग हम लोग जिसमें सर WSP हम लोग गांव वालों से चर्चा करते हैं और गांव वालों से चर्चा करके मतलब उसको एक तरह से प्रूव्ड करा लेते हैं कि ये जो है वाटर सिक्योरिटी प्लान है और इसमें ये चीजें जोड़ी गई हैं, मतलब ये सप्लाई साइड ये इंटरवेंशन किए गए हैं, डिमांड साइड में ये इंटरवेंशन किए गए हैं, उनको अवगत कराया जाता है और गांव वाले उसको जो है सुनते, उसमें उनको कुछ रिएक्ट करना होता है सर, या कोई फीडबैक देना होता है, सजेशंस देना होता है, वो आता है सर। ठीक वो है। चीज पहला स्टेप हो गया सर। जब वहां से वो कंप्लीट होता है सर, तो फिर हम अगले पार्ट में जाते हैं सर, ये रिवोल्यूशन वाला, ये जो संकल्प वाला है सर, तो उसमें जो ये वाटर सैनिटेशन कमेटी बनी है सर, इनसे अप्रूवल कराते हैं, मतलब इनके साथ भी वो डिस्कशन करते हैं सर। फिर आखिरी स्टेप सर हम ग्राम सभा में ले जाते हैं और फिर ग्राम सभा में सर वो ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं या वहाँ के जो भी सेक्रेटरी GRS वगैरह हैं, उनके समक्ष वो WSP जाती है सर, तो वो फिर जाके वहां पे फाइनल होती है सर। तो अभी एक तक सर सेकंड। सर इस प्रोसेस में प्रॉब्लम है, क्योंकि हाँ। अगर आप दूसरे मीटिंग में वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी से रिजोल्यूशन पास करा लेंगे और तीसरे मीटिंग में ग्राम पंचायत की मीटिंग करके आप ग्राम सेक्रेटरी से वेरीफाई कराएंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग डेट में होगा। जो आदमी दूसरे मीटिंग में है, कोई जरूरी नहीं वो तीसरे मीटिंग में होगा, और यही आपके साथ प्रॉब्लम हुआ है। जी सर। तो काइंडली करके मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप मीटिंग बेशक 3 करें, लेकिन रिजोल्यूशन पास करें अंतिम मीटिंग में, जिसमें आप विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी के लोगों को भी बुलाएं और पंचायत के लोगों को, यानी सरपंच और
पीडीओ या पंचायत सेक्रेटरी जो होता है उनका भी रहना जरूरी है। तो इस मीटिंग का जो मिनट होगा वो एक ही बनेगा और उसमें साइन जो होंगे रिजोल्यूशन में 3/4 लोगों के और वही कॉमन लोगों के साइन भी एमओएम में भी होंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा आपको इधर उधर करना पड़ेगा। मीटिंग बेशक करें आप, जो करना भी चाहिए, अदरवाइज लोगों को पता नहीं चलेगा। ये अगर इस प्रोसेस में लग रहा है आपको कहीं, क्योंकि अभी क्या हुआ मैं समझ रहा हूं, आप लोगों ने रिजोल्यूशन पास करा लिया, उसके बाद जब पंचायत की मीटिंग हुई उस समय में सारे रिजोल्यूशन के लोग नहीं थे वहां पे, इसलिए जी सर, मैच नहीं कर रहा। जी तो सर, थोड़ा यही सा है इसको आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा अभी। तो सर ठीक है? ये जो सर एक क्लियरेशन ये चाहिए था सर कि जो ग्राम सभा लास्ट वाली हो रही है सर, उसी को सर हम मान लें कि यही जो है अब ये जो है अंतिम अनुमोदन है और उसी को मीटिंग 7 मिनट में हम जो है अपलोड करें सर WSP के साथ सर, उसको ये आप सही ग्राम रहेगा। सभा बोल रहे हैं, मैं उसको ग्राम पंचायत बोल रहा हूँ, फर्क इतना ही है। ग्राम सभा मुझे जो समझ में आता है, हर विलेज का एक ग्राम सभा होता है और सारे विलेज को मिला के ग्राम पंचायत होता है। ये सही है या नहीं है? सर इसमें सर ग्राम सभा तो सर वो कलेक्टर की तरफ से सर वो जो है कंडक्ट कराई जाती है सर, वो उसकी ग्राम सभा की डेट जारी होती है सर, उसमें नोडल अधिकारी जाते हैं सर, उनकी नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगती है सर। ग्राम पंचायत में वो बड़े लेवल पे सर वो मीटिंग बुलाई जाती है सर पंचायत भवन में, और जिसमें गांव के पंच भी रहते हैं, सरपंच भी रहते हैं और अदर लोगों को भी उसमें सर बुलाया जाता है सर। सही तो सही उसके सही। बहुत सारे एजेंडे रहते हैं सर, उसमें एक अटल भूजल का भी एजेंडा कलेक्टर साहब जैसी हमारी WSP अनुमोदन के लिए जाती है तो एक एजेंडा हमारा भी हो जाता है सर। उसका जनपद की तरफ से, जिले की तरफ से नोडल अधिकारी भी सर वहां पे रहते हैं सर, तो पूरी तो आप ये प्रोसीडिंग सब बताओ, चीजें आती हैं सर। तो क्या रिजोल्यूशन उसमें पास नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है सर, कर लेंगे सर। तो ये कर लो ना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसी में रिजोल्यूशन पास हो गया, उसी में मीटिंग हो गई, उसका मिनट्स बन गया, काम खत्म। अंतिम वाली जो है सर उसी में कर लेते हैं दोनों। अंतिम वाली, यस। जी ठीक सर, है? ओके सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। ये अगर ये आपको सूट करता है तो काइंडली अब प्रोसेस जो आप करेंगे वो ऐसा ही करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपसे कभी फिर दोबारा गलतियां नहीं। ठीक है? ठीक है सर। ओके। सर ये 10 में सर अभी तो सर छूट दे दीजिए सर, तो ये 10 हमारी हो जाए। अब ये मैं डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए आपसे हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ हुआ था। देखिए ये सर एक, इसमें ये थैंक यू सर। बताएं बताएं सर बताएं। इसमें समस्या का समाधान एक हो सकता है, हाँ जो लोग मीटिंग में रहे हैं उनके साइन हो सकते हैं, तो वो उसी बैठक में हो सकता है ये पूरा काम, तो उसमें संपर्क करके उनसे साइन करवा लिए जाए 3/4 का। और दूसरी चीज ये बता रहे चुनाव हुए हैं तो 23 फरवरी तक है सर, इसके बाद जो भी पंच सरपंच बनेंगे वो पदभार ग्रहण करेंगे, उनका चार्ज होगा, तो मार्च में भी संभव नहीं है कार्य कर पाना, अप्रैल से ही हो पाएगा। हमारा ये जो मीटिंग है इसका उद्देश्य ये है कि हम आपसे समझने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम तो सर हुआ कहाँ पे और क्यों हुआ। ठीक है? सर इसी कारण से हुए, इसलिए इसका एक ही समस्या का समाधान है कि 189 पूर्ण हो जाए, तो जिनमें 1/3 के साइन नहीं है तो वो गांव में संपर्क करके, कि वो मीटिंग में तो आए हैं लेकिन साइन नहीं हो पाए उस दौरान, तो उनसे किया जा सकता है। अगर आपकी अनुमति हो तो ये 189 का समाधान हो सकता है। ये डिसीजन मैं नहीं दे सकता। मैं बोल रहा हूँ ये मीटिंग का उद्देश्य है ये समझना कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसके बाद हम लोग सब मिलके यहाँ पे हमारे मंत्रालय में हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर साहब हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनके साथ बैठ के हम वार्तालाप करेंगे और जो भी पॉसिबल इसमें हो सकता है हम लोग करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? हम समझ रहे हैं आपकी प्रॉब्लम को। हाँ नहीं सर इसमें क्या है कि डेट नहीं डली है तो सर इस पे भी छूट देनी दोबारा से चाहिए। सर ग्राम सभा का में अनुमोदन करवाना पड़ेगा, दोबारा से पूरा फिर पेपर ये चेंज हो गए पूरा। तो समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। आपके यहाँ आचार संहिता है, फरवरी से पहले नहीं हो सकता, ये सब हम लोगों को मालूम है। फरवरी नहीं सर, अप्रैल के आसपास ही जा पाए, क्योंकि कुछ लोग चार्ज देंगे कुछ नहीं देंगे, तो जो चुनाव जीतते हैं सरपंच जो रहते हैं वो कई बार चार्ज भी नहीं देते हैं, ये प्रॉब्लम रहती है, तो इसके बाद ही हो पाएगा। अप्रैल तक आप मान के चलें। वो मैं समझ रहा हूँ। अब इसके आगे वाला जो मुद्दा है उसमें बात करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने डिक्लेरेशन, MOM और रिजोल्यूशन की बात कर ली है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, अब यहाँ पे जो पहला चीज लिखा हुआ है, पहला 1 इंटरसेक्शन ऑफ 1 2 3 का मतलब क्या होता है?
डिक्लेरेशन, रिजोल्यूशन ऑन मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये तीनों को मिलाने के बाद जो फाइनली आपके निकल के आए जो सही थे वो 6 थे सिर्फ। ठीक है, अब दिक्कत है वाटर बजट। वाटर बजट में ये आधे हो गए। ये वाटर बजट कंप्लीटनेस का बेसिस क्या है? आप में से कोई बता सकता है? ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि ये जो QCI ने बताया कि आपका वाटर बजट जो है 6 में से 3 में इनकम्प्लीट था, ये आपको क्या समझ में आता है? किस बेसिस पे ये देखा गया है? कोई एक आदमी बता सकता है मुझे? SPMU या DPMU या DIP में से किसी से भी ऐसा कौन सा चीज था जिसके बेसिस पे ये 6 में से 3 हो गए? क्या है वो कंप्लीटनेस? अगर आपको मालूम नहीं होगा तो नेचुरली आप समझ लो कि हम उसके बारे में आपसे दोबारा बात करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मालूम है तो काइंडली बताने का कोशिश करेंगे। ये क्लैरिटी बहुत जरूरत है हमें, आप लोगों को जानने की भी जरूरत है, हमें भी जानने की जरूरत है। तो आप ये बताएं कि वो किस बेसिस पे ये बोला गया कि ये कंप्लीट है या नहीं है? QCI ने अगर बोला तो क्या था? क्या उसमें पैरामीटर देखा उन्होंने? क्या क्लैरिटी है आपके पास इस बात का? अगर कोई जवाब नहीं आ रहा है इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है आप लोगों को इसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। ये सही है? हेलो, हाँ जी बताएं। पवन जी बोल रहा हूँ SPMU भोपाल से जी। वाटर बजट का मतलब ये है कि हमारे उसमें सारे कंपोनेंट थे, मतलब उसमें अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन, बैलेंस, ये सारे डेटा का कैलकुलेशन हुआ है और आखिरी में इंटरवेंशन तक भी प्रपोज किए हैं। वो करेक्ट है नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये सारे कंपोनेंट है तो वाटर बजट कंप्लीट माना उन्होंने। May I request QCI to explain what is that completeness you know? मैं QCI से अनुरोध कर रहा हूँ एक बार वो आपको अपने शब्दों में बताएं कि कंप्लीटनेस का बेसिस और क्राइटेरिया क्या है। कौन बताएगा? तेजस्वी राजू। तो वाटर बजट को हम तब कंप्लीट मानते हैं जब आपने देखा होगा अवेलेबिलिटी के जितने भी पैरामीटर्स हैं अंदर, यूटिलाइजेशन के पैरामीटर्स हैं और फिर फाइनल जो भी वाटर बजट आया मतलब डेफिसिट या फिर सरप्लस, उसके जो पैरामीटर्स हैं जब वो सारे कंप्लीट हैं, वहां पे कोई ब्लैंक नहीं है तो हम उसे कंप्लीट मानते हैं। अगर कोई ब्लैंक आ जाता है बीच में, जैसे नंबर ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज ब्लैंक है तो हम उसे नहीं, उसको इनकम्प्लीट मानते हैं। अगर उसको 0 है तब भी हमने उसको कंप्लीट माना है, 0 इज अ नंबर। और हमने अगर कोई गांव में शायद हो सकता है कि सरफेस वाटर बॉडी नहीं है तो हमने 0 को भी माना है, पर अगर कहीं पे ब्लैंक है तो हमने तब उसको इनकम्प्लीट माना है। अब इसके बारे में आप लोगों का कोई सवाल है? अगर समझ में आ गई बात तो इसके बारे में आपका कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। फिर ये रिपीट क्यों हो रहा है? इसको फिर से रिपीट किया जाए सर एक बार। जी जी बिल्कुल। सर आपने MIS में देखा होगा कि अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन और बजट, इसमें जब आप जाएंगे काफी पैरामीटर्स हैं। अवेलेबिलिटी में जैसे एनुअल रेनफॉल है, यूटिलाइजेशन में इरिगेशन है, इरिगेशन में कितना पानी यूज हुआ, और बजट में दोनों का माइनस करके है। सर जब ये सारे पैरामीटर्स कंप्लीट है, कोई भी एक फिगर डाला हुआ है उसमें, तो हम उसे कंप्लीट मानते हैं। अगर ये ब्लैंक है तभी इसको इनकम्प्लीट माना गया है। अगेन फॉर एग्जाम्पल, अगर नंबर ऑफ सरफेस वाटर बॉडी में ब्लैंक है तो हमने इसको इनकम्प्लीट माना है। पर अगर वहां पे 0 लिखा है, ऐसा हो सकता है कि कोई गांव में नहीं है वाटर बॉडी और आपने 0 डाला है तो हमने इसको कंप्लीट माना है। अगर कहीं पे भी ब्लैंक है तभी उसको इनकम्प्लीट माना गया है। Is this that you are talking about? Can you explain this way? ये स्लाइड नहीं है तो। मतलब नंबर डालना जरूरी है, चाहे वो 0 ही क्यों ना डाला जाए। Okay, let me explain. मैं थोड़ा सा इसको फर्दर क्लैरिफाई करना चाहता था।
जो तेजस्वी मैम बता रही हैं PCI से, साउंड थोड़ा किसी एक का माइक इज इट ओके? राइट, अभी आवाज आ रही है? यस आवाज सर। आ रही है अभी? जी जी सर, आ रही है। हाँ जी। तो मैं थोड़ा सा इसको फर्दर क्लैरिफाई कर देता हूं आपको। जो कंप्लीटनेस की बात हो रही है यहाँ पे वाटर बजट की, उसमें जो इंफॉर्मेशन चेक किया गया है उसमें पहला चीज कि बेसिक पैरामीटर्स, यानी कि क्या स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक का एरिया, बेसिन का, सॉरी, जीपी का एरिया, पॉपुलेशन, लाइव स्टॉक, ये सारी चीजें, या रेनफॉल, ये सारी चीजें दी गई हैं या नहीं दी गई हैं। दैट इंक्लूड्स द ग्राम पंचायत मॉड्यूल इन द वाटर सिक्योरिटी प्लान, वाटर अवेलेबिलिटी मॉड्यूल, वाटर यूटिलाइजेशन मॉड्यूल और वाटर बैलेंस मॉड्यूल। ठीक है, इनमें ये सारे पैरामीटर को देखा गया। क्या देखा गया? क्या ब्लैंक है या नहीं है। अगर आपका कोई वाटर बॉडी, ऐसा प्रोबेबल हो सकता है कि किसी ग्राम पंचायत में कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, वो 0 लिखा हुआ है, उसको भी कंप्लीट माना गया है। अगर आपने डैश लिख दिया, यानी कि आपने उसका डेटा नहीं दिया, तभी वो इनकम्प्लीट है, पहला। दूसरा, आपके वाटर यूटिलाइजेशन में आपने जो भी इंडस्ट्री के लिए या इरिगेशन के लिए या ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो भी चीजें डाटा अगर आपने उसमें भरा हुआ है, तो उस सबको कंप्लीट माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर अवेलेबिलिटी ग्राम पंचायत सबसे पहला सब मॉड्यूल है WSP का, उसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी है, उसके बाद वाटर यूटिलाइजेशन है, उसके बाद वाटर बैलेंस है। इन चारों में अगर आपके सारे फील्ड भरे हुए हैं तो वो इनकम्प्लीट नहीं होगा, वो कंप्लीट होगा। अब आपको ये चेक करना है कि ये 6 में से 3, हम आपको कोशिश करेंगे ये बताने का, बाय द टाइम हम कैन वी आइडेंटिफाई दिस 3। तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा इसी मीटिंग के अंत तक ये बताने का कि वो कौन सा ग्राम पंचायत है जिसमें ये प्रॉब्लम हुआ कि आपका वाटर बजट इनकम्प्लीट था, ताकि आपको क्लियर कट इसको पता चल जाए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? या अगर आपको कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो पूछ सकते हैं आप। तीसरा जो यहाँ पे हाँ, बताएं। हाँ, तो मैं ये बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि ये कंप्लीट वाटर बजट कंप्लीट का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है या और क्लैरिफिकेशन चाहिए इसमें? हमने सारे फील्ड चेक करे हैं जिसमें डेटा भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ। कोई क्लैरिफिकेशन SPMU, DPMU, DIP किसी को? आप ध्यान दें, इसमें हमने सिर्फ 6 का चेक किया है। अब आपको सारे 189 का खुद चेक करना पड़ेगा एक बार। सर, निवेदन ये है कि ये कौन से WSP हैं जो पास हुए हमारे? ये हम आपको अभी इस मीटिंग के अंत तक बता देंगे, लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि ये ध्यान रखें, ये हमने सिर्फ 6 में ही चेक किया है, क्योंकि आप वहां तक जो पहुंचे हैं वो 189 में से सिर्फ 6 थे। ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोच ले कि 189 हमने चेक किया है, उसमें से सिर्फ 3 क्वालिफाई हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप सब लोगों को, सारे DIP एंड DPMU को कंप्लीटनेस का दोबारा एक बार चेक करना पड़ेगा MIS में या आपके प्रिंट आउट में। अदरवाइज क्या होगा, आप लोग इसको छोड़ देंगे, जब अगले वेरिफिकेशन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहां आके फिर फंस जाएगा। प्लीज, मेरा बार बार आप सबों से रिक्वेस्ट है, QCI ने अपना काम किया, हमको हेल्प किया कि नहीं आपने ये चीजें यहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स है, अब उसके आगे का काम हमारा है उसको कंप्लीट करना। तो सारे DIPs एंड DPMU से मेरा अनुरोध है, कंप्लीटनेस इन टर्म्स ऑफ
filling the data for different fields under the 5 templates of the WSP need to be checked thoroughly. Am I clear now? सर निवारी से निवेदन है, हाँ बताएं। अनुरोध ये है कि जो इन ऑल रिस्पेक्ट जो QCI के नॉर्म्स में WSP एक आ रहा हो, उसका मॉडल अगर एक हमको उपलब्ध हो जाए तो ये सुविधा रहेगी कि अलग अलग, आपने तो अलग अलग स्टेज पर रोक दिया चेकिंग, कहते हैं अगर हमारा MOM नहीं हुआ तो आगे नहीं गए। तो सर एक मॉडल हम लोगों को मिल जाए तो वो हमारे सबके काम आएगा कि हम अपना उसी पैरामीटर में अपने सभी WSP चेक कर लेंगे। आपका सुझाव हमने ले लिया है और ये बहुत अच्छा सुझाव है, हम भी इस बारे में विचार कर रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली हम आपको एक मॉडल, आपके स्टेट का एक मॉडल वाटर सिक्योरिटी प्लान जो सब तरफ से क्वालिफाई हो रहा है, हम आपको करके बताएंगे, देंगे। थैंक यू। ठीक है, और बताएं। हाँ, अभी तेजस्वी मैडम आपको बता रही है कौन से वो 3 ग्राम पंचायत हैं जो 6 में से 3 जो फिल्टर हो गए, वो कौन से हैं? तो जो फिल्टर आउट हो गए हैं वो है बरियाच खेरा, धामची और सरानी। कौन से डिस्ट्रिक्ट? इनकी डिस्ट्रिक्ट ये आप लोग समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ग्राम पंचायत का नाम है। तीनों छतरपुर के हैं जो फिल्टर आउट हो गए हैं 6 में से। तो वो 6 भी छतरपुर के ही थे? नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब छतरपुर से जो 3 कंप्लीटनेस के बेसिस पे जो फिल्टर आउट हो गए हैं, जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उनका नाम है बरियाच खेरा, धामची और सरानी। और जो क्वालिफाई हुए हैं उसका नाम है ब्रजपुरा, महलवारा और नेगवान। इसमें ब्रजपुरा छतरपुर से है और बाकी 2 महलावार और नेवगांव जो है वो दामो से है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? आप लोग तो इतना काम कर रहे हैं, मुझे तो मतलब मुझे भी कभी कभी अपने आप पे तरस आता है कि इतना आप लोग एकदम जूझे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, कोई नहीं, इसमें डिसहर्टन होने की कोई बात नहीं है। आगे हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि इस तरह का कोई गलती ना हो, कभी हमसे भी ना हो, आपसे भी ना हो, और हम लोग सब मिलके एक साथ इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये ब्रजपुरा, नेगवा और एक कौन सा गांव है? नेगवान, ब्रजपुरा, नेगवा और तीसरा महलवारा, ये क्वालिफाई हो गए हैं जी, और इन्हीं 3 का ग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ है। ठीक है, स्टेप आपको समझ में आ गया? अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो डेस्कटॉप की बात कर रहे थे। अब यहां जो क्वालिफाई कर गया, यानी कि उसमें इंटरवेंशन भी है और कंप्लीट भी है, उसको ग्राउंड पे QCI के लोगों ने जाके ग्राउंड पे चेक किया कि क्या बाकी चीजें, आपका सोर्स डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, लोग वहां पे अवेयर है नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उसमें जाके ये 3 के 3 दोबारा डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, तो ये पूरा स्टोरी जो हमको समझ में आ रहा है, जो हम आपसे बातें कर रहे हैं, आपको अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि नहीं हम लोगों को फर्दर क्लैरिटी चाहिए, या हमको लगता है कि नहीं ये चीज बिल्कुल गलत है प्रोटोकॉल में, ये नहीं होना चाहिए, या ऐसा कोई चीज जिसमें माइनर मॉडिफिकेशन की जरूरत है, इस बारे में DPMU, SPMU और DIP एक एक करके अगर बताना चाहे तो बता दें। इसके अलावा एनीथिंग एल्स वी वांट टू डू? नहीं, एक सेकेंड। तो जो 6 में से 3 कंप्लीट हो के बेसिस पे, यानी वाटर बजट भी उसमें सही था और सप्लाई इंटरवेंशन भी सही थे, ये 3 वो है जो ब्रजपुरा, महलवाड़ा और नेगवान, इसमें मेरे ख्याल से 1 छतरपुर है, 2 दामो है,
यहाँ पे QCI के लोग फिजिकली गए, जो आपको भी पता है, और वहां पे उनका जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस के बारे में अगेन तेजस्वी, आई वुड रिक्वेस्ट आप उस प्रोसेस को थोड़ा उनको समझाने की कोशिश करो कि हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन इन लोगों ने कैसे करा। आप इस पे भी अपना सुझाव दे सकते हो। तो ये 3 जीपी में हम पहले गए और सिर्फ सोर्स डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें। सोर्स डॉक्यूमेंट 8 पैरामीटर्स के सोर्स डॉक्यूमेंट सारे डीपीएमयू से कलेक्ट करे गए। अब ये जो 3 जीपी है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट के करेक्शन में ही आउट हो गए, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट मैच ही नहीं करा किसी का। मैं ये बता दूं कौन कौन से सोर्स। हाँ जी। और सोर्स डॉक्यूमेंट जो 8 पैरामीटर्स हैं वो है ब्लॉक एरिया, ह्यूमन पॉपुलेशन, लाइवस्टॉक पॉपुलेशन, जीपी एरिया, एनुअल रेनफॉल, इवेपोट्रांसपिरेशन, नंबर ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज और वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। ये जो 8 पैरामीटर्स हैं, ये 3 जीपी उसी में आगे बढ़े ही नहीं, इनकी मिसमैच कर गए सोर्स डॉक्यूमेंट्स में। तो अब जो डीआईपी इस गांव का है, ग्राम पंचायत का ब्रजपुरा, वो आप मुझे बताओ कि आपको सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाने में ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ। मैं सिर्फ उस डीआईपी से सुनना चाहता हूं या डीपीएमयू से। तिवारी जी, आप छतरपुर से ही है ना? तो छतरपुर का ब्रजपुरा, जी जी जी, इसका सोर्स डॉक्यूमेंट आप क्यों नहीं दिखा पाए? ये 8 पैरामीटर का डॉक्यूमेंट तो जो भी सोर्स वगैरह थे वो सोर्स तो समझ तो लिए गए हैं सर, हमारी समझ से तो त्रुटि नहीं हुई है इसमें। एक सेकेंड लिए, देखिए 2 चीज है, या तो सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं मिला, या मिला तो उसमें जो वैल्यू लिखा था, अब जैसे फॉर एग्जांपल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन आपके सोर्स डॉक्यूमेंट में 7,000 लिखा हुआ था और आपके एमआईएस में 4,500 लिखा हुआ था। मिसमैच। 2 चीजें चेक की गई, क्या सोर्स डॉक्यूमेंट आपने दिया या नहीं दिया ऑथेंटिक, और अगर दिया तो वो क्या मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहां पे हुआ है। तो अब एमआईएस फीडिंग में त्रुटि हो सकती है सर, इसमें एमआईएस फीडिंग के दौरान ये त्रुटि हो सकती है। तो अगर ये त्रुटि हो गई तो QCI या कोई भी आदमी बोलेगा कि भाई आपके पास सोर्स डेटा तो कुछ और है, आप डेटा कुछ और ले रहे हो, तो ये तो गलत हो गया ना तिवारी जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम देखिए, हम लोग एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे, हम लोग एक दूसरे को इंप्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो अगली बार से आप याद ध्यान रखें कि जो भी आप डेटा MIS में यूज कर रहे हैं, चाहे वो अवेलेबिलिटी के लिए हो, चाहे वो यूटिलाइजेशन के लिए हो, आप वही डेटा का सोर्स आपको देना पड़ेगा। दोबारा मैं बता रहा हूं, अगर वो सोर्स ऑथेंटिक आपको कहीं से नहीं मिल रहा जी, आप ग्राम पंचायत या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी उसको वेटिंग करा के दे सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको एक आंकड़ा जो कि ऑथेंटिकेटेड आंकड़ा है, नंबर है, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपसे मेरा खास करके अनुरोध है, ब्रजपुरा के केस में ये 8 जो पैरामीटर अभी तेजस्वी मैडम ने बताया, उसके पैरामीटर और सोर्स डॉक्यूमेंट को एक बार जरूर चेक करें, ताकि आपको ये समझ में आए कि कहां पे हम गलत जा रहे हैं या कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है? और ये बातें आप दूसरे लोगों को भी बताएं, अपने जितने भी बंधु हैं आपके इसमें DIP में। ठीक है? तो ये बड़ा क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, हमने ऐसा कोई भी इसमें जैसे एरिया एक बहुत छोटा सा चीज है, और मुझे भी पता है ये प्रॉब्लम हुआ है। एरिया हमने GPDCI मॉड्यूल में एरिया ब्लॉक का कुछ और लिखा है ग्राम पंचायत का, और जब हम ग्राम पंचायत में अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करने गए तो वहां पे कुछ और लिख दिया। अब ये तो मान्य है नहीं। इसके अलावा पॉपुलेशन है जिसके बेसिस पे आप ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, इसके अलावा रेनफॉल है जिसके ऊपर से अवेलेबिलिटी कर रहे हो आप। तो मेरा बार बार अनुरोध है, जो भी आपके सोर्सेज हैं उसको कृपया करके ऑथेंटिकेट करके वो डॉक्यूमेंट इनको भी प्रोवाइड करें और उसी डेटा को MIS में भी यूज करें। ठीक है? ये हो सकता है कई बार ये मिस्टेक हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग पहली बार कम्युनिटी या ग्राम पंचायत लेवल पे काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसको बहुत निगेटिव सेंस में लेने की जरूरत है, बट यस, ये कॉशन जरूर है हमारे लिए। ठीक है? इसमें गंभीरता बढ़ती जाएगी सर। अभी क्या था कि एक साथ में 70 WSP और 3 दिन के भीतर सबमिट करना हमारे लिए बहुत कठिन काम था। संपूर्ण रूप से चेक कर पाना ये संभव नहीं था।
इसलिए ये आपकी बात त्रुटियां हुई है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस बार हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 2 फेज में ये सबमिशन करेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो शायद इस आपके फेज लिए में भी ठीक आसान रहेगी। होगा, हमारे लिए भी आसान होगा। तो वो हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपसे भी विचार करेंगे क्या हमारा बेस्ट तो तरीका हो। हाँ, हमारा तो सुझाव ये है सर, इसको जैसे जो जो इनकम्प्लीट है, जैसे 3 है, 3 को हम कंप्लीट करके एक बार आपको दिखाना चाहते हैं, और यदि आपके यहाँ से ओके हो जाता है तो हम उसी बेस पे फिर आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको, अब वो सब आपको ऑफिशियली कम्युनिकेट किया जाएगा। और जी मैं तो देखो तिवारी जी इस चक्कर में हूं कि अब जी आप मुझे दिखाओ ही मत। अब जी आपको सारी त्रुटियां एक एक करके हम लोगों ने बताई हैं। जी अब तो अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं तो एनपीएमयू एसपीएमयू को डीपीएमयू को दिखाता ही नहीं। मैं तो खुद देखता सबसे पहले और 100% मार्क्स देता कि नहीं अब इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब आप लोग तो इतना काम कर रहे हो ग्राउंड में, आपको सभी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। जी जी तो मेरा ये अनुरोध है, लेकिन जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन का वो तो होगा। यूसीआई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करेगी, एनपीएमयू हम लोग जितना देख के आपको सुझाव दे सकते हैं वो भी देंगे। तो ये प्रोसेस हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो सुझाव था कि इसमें से कितने ठीक हो सकते हैं नहीं हो सकते, उसके बारे में हम रिवर्ट बैक करेंगे आपसे, ठीक है? एक बार पूरी तरह से चेक करने पड़ेंगे। ये 70 छतरपुर से जमा किए गए हैं, तो बिल्कुल। एक एक डब्ल्यूएसपी को थोरोली चेक करना पड़ेगा गंभीरता सारे पूर्वक। डीपीएमयू इंचार्ज, नाउ आई कैन, अभी मैं आपको दोबारा ये बता रहा हूं कि अगली बार से अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ तो जितने भी डीपीएमयू के सिग्नेटरीज हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी। ये मंत्रालय की तरफ से भी मैसेज है, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वी ऑल आर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आप तो सब लोग गवर्नमेंट में सर्विंग एम्प्लॉइज हो। कोई भी कागज को साइन करने से पहले हमारा ये फर्ज होता है कि मैं उसको समझ लूं, देख लूं। इसके लिए मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा, एसपीएमयू के साथ मिलके आप एक चेकलिस्ट बनाओ कि जब डीपीएमयू का ऑथराइज्ड ऑफिसर डिक्लेरेशन साइन करता है उसको क्या 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 चीज चेक करना है, और वो चेकलिस्ट अपने पास रखो। आप फटाफट आपने चेकलिस्ट टिक किया, हाँ भाई चलो हमने देख लिया, साइन किया, काम खत्म आपका। ठीक है, तो प्लीज वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सब लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा कोई काम नहीं कर रहा, हर लोग काम कर रहे हैं, बट थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है। राइट? हाँ जी बताइए। एक सेकेंड, अब दोबारा क्या दोबारा बता सकते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। कहां से आता है? एक सेकेंड। जियो टैगिंग का डेटा आपने इसमें यूज किया है, कहने का मतलब ये बता रहे हो आप? मतलब जो इन्वेंट्री के समय में आपने ग्राम पंचायत में जितने भी वाटर बॉडी का जियो टैगिंग करा, उसी डेटा को आपने अवेलेबिलिटी में यूज किया है। राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां पे एक सेल्फ साइंड एक डिक्लेरेशन लिखोगे कि इसमें जियो टैग जो इन्वेंट्री के दौरान किया गया है वही डेटा इसमें बॉडी का यूज हुआ है, और वो मैप व्यू में देखा जा सकता है। नहीं नहीं, फील्ड बोलना उचित, देखिए फील्ड नहीं, आपको वाटर बॉडीज के मामले में आपको अलग से ये एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि ये हमने जियो टैगिंग का डेटा लिया हुआ है जो इन्वेंट्री के दौरान किया गया। क्योंकि वाटर बॉडी का एक ऐसा चीज है, एक ऐसा अहम एक पैरामीटर है जिसपे आपका इंटरवेंशन भी डिपेंड करता है, प्लस आपका अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करता है। इसलिए एक छोटा सा एक लाइन 2 लाइन का एक अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी लगा देते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी एक्सेप्ट करने। ठीक है? ठीक है ना, मान लिया आपकी बात में। भाई किसी भी सैटेलाइट डेटा से आप मान लो
1 साल पहले का सैटेलाइट बॉडी है, आप ग्राउंड पे जो वेरीफाई कर रहे हो अगर वो सही है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो ना कि हमने इतने जियो टैग किए, इसमें गलतियां तो कोई होनी नहीं है। हाँ ठीक है ना, आई थिंक दिस विल वर्क, कोई इशू नहीं है, हम तो सब चीज में सहमति है, जो भी बेस्ट तरीका होता है हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं, हम कोई ऑफिशियल फॉर्मेलिटी में बिलीव नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा को हमको देखना जरूरी है। ठीक है, आगे बताएं। अभी तक एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक इस पूरे प्रोसेस में जिसने भी जिसको कि डेस्कटॉप वेरिफिकेशन या फील्ड वेरिफिकेशन करते हैं, हमने अभी तक इसमें वो कोई बात नहीं करी कि आपने ये वाटर सिक्योरिटी प्लान में जो इंटरवेंशंस बताए हैं उसका प्रोसेस क्या था अराइव करने का, उसके बारे में हमने अभी बात नहीं की है। काइंडली आप लोगों से एक दोबारा मेरा अनुरोध है, पर्सनल अनुरोध है कि टेक्निकल प्रोसेस को फॉलो करें। दो ही चीज इस पूरे प्रोग्राम में है, एक है कम्युनिटी इंगेजमेंट, दूसरा है वाटर बजट और प्लान बनाना। कम्युनिटी इंगेजमेंट के बारे में अभी हमने सारी बातें कर ली, ठीक है, और उसके आगे उसको प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्री भी चीजें हैं, रिजोल्यूशन है, एमओएम है, लेकिन इंटरवेंशन प्रपोज करने के लिए हम कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपसे नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि कोई ना कोई इंटरवेंशन होना चाहिए, लेकिन उस इंटरवेंशन को प्रपोज करने के लिए बैकएंड पे आपने क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया, क्या आपने लैंड यूज मैप देखा, क्या आपने कोई ड्रेनेज मैप देखा, क्या आपने कोई हाइड्रोजोलॉजिकल मैप देखा, क्या आपने कोई एक्यूफर का अंडरस्टैंडिंग हुआ आपका, इन सब चीजों को आपके एसपीएमयू में मुझे पता है काफी अच्छे लोग हैं, सिंह साहब हैं, मेरे ख्याल से आपके जीआईएस के एक्सपर्ट हैं, खुद जैन साहब हैं, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, कल को कोई भी आदमी थर्ड पार्टी, नॉट क्यूसीआई, कोई भी आदमी अगर टेक्निकल बंदा आपसे जाके डीआईपी से पूछता है कि भाई आपने ये चेक डैम जो बताया है, ये क्यों बताया चेक डैम यहाँ पे, आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। या आपने एक परकोलेशन पॉन्ड का लोकेशन दिया है तो वहां पे क्यों दिया है, क्या वो रिचार्ज एरिया है, क्या वो रीच के वैली के कॉन्सेप्ट पे है, क्या वो फर्स्ट ऑर्डर ड्रेन पे है, ये सारी चीजें हम आप लोगों से जब आपके पास गए थे वर्कशॉप में हमने सारी चीजें आपको बताई, यहां पे वो चीज चेक नहीं कर रहे हम, लेकिन कल को कोई भी साइंटिफिक बॉडी ये चीज चेक कर सकता है, इसलिए इस प्रोसेस पे भी ध्यान दें। कागज दिखाना एक चीज है, प्रोसेस फॉलो करना अलग चीज है। हम आपसे अनुरोध बार बार कर रहे हैं, रैंडम कोई काम ना करें, जो भी इंटरवेंशन आप बता रहे हैं, चाहे वो सप्लाई साइड का हो चाहे वो डिमांड साइड का हो, उसके पीछे एक प्रोसेस होता है, उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक साइंस है, उसको भी जरूर फॉलो करें। और इस मामले में एसपीएमयू को खास करके अनुरोध कर रहा हूं, आपके यहाँ जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो वाटर रिसोर्स के हों, चाहे वो आईईसी के हों, काइंडली इन चीजों को आप अपने लेवल पे इंश्योर करें, और इसके लिए जरूरत पड़ता है तो आपको फ्रीक्वेंट फील्ड विजिट भी करना पड़ेगा। अदरवाइज कल को ऐसा ना हो सब कुछ ठीक हो गया, कागज सही है, लेकिन कल को एक कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन आके उंगली खड़ा कर देता है कि नहीं जी इन लोगों ने तो कुर्सी टेबल में बैठ के सारा इंटरवेंशन बताया है, ग्राउंड में कोई रियलिटी नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सप्लाई इंटरवेंशन, इवन देन 15 चेक डैम हैज बीन प्रपोज्ड, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं, साइंस को भी साथ लेके चले, प्रोसेस कम्युनिटी इंगेजमेंट का काफी सारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसके लिए हम आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो कल को आपसे डॉक्यूमेंट भी मांगा जाएगा कि क्या आपने ड्रेनेज को कंसीडर किया था चेक डैम का लोकेशन के लिए, क्या आपने रिचार्ज डिस्चार्ज एरिया निकाला था परकोलेशन टैंक का स्ट्रक्चर बताने के लिए, क्या आपको मालूम है कि आपके ग्राम पंचायत में प्रेजेंटली कितना % एरिया माइक्रो इरिगेशन में है और कितना % एरिया आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं है। कई ऐसे ग्राम पंचायत होते हैं जहां पे माइक्रो इरिगेशन लग ही नहीं सकता है, वहां पे क्या आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, क्या आप कोई इनोवेटिव प्रैक्टिस लगा रहे हैं,
क्या आप फीडर सेपरेशन के थ्रू कर रहे हैं? ये सारी चीजें आप लोग जो टेक्निकल लोग हैं, जो डीपीएमयू और एसपीएमयू में टेक्निकल लोग हैं, वो काइंडली फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करें जो डीआईपी के लोग हैं उनसे। अदरवाइज वो काम जैसा आपने अभी बताया है उस एस्पेक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति अब- में क्या किया जा सकता सर? अब देखिए सब, ये तो तिवारी जी आप अकेले आदमी बोल रहे हैं। मैं तो एसपीएमयू से ये सुनना चाहूंगा, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, जीआईएस के एक्सपर्ट हैं, जियोफिजिक्स के एक्सपर्ट हैं, जियोलॉजी ग्राउंड वाटर के एक्सपर्ट हैं। अब अगर ये प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे तो पता नहीं कहाँ जाना चाह रहे हैं। क्योंकि आप ये समझ लो, प्लान बनाना अल्टीमेट इस प्रोजेक्ट का काम नहीं है, प्लान को इंप्लीमेंट भी होना है। कल को कोई भी लाइन डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करेगा तो आपसे पूछेगा ना, भैया ये प्लान जो आपने बनाया ये कहाँ डालूं, मैं कहाँ बनाऊं वो सप्लाई स्ट्रक्चर, या कहाँ करूं वो इंटरवेंशन में, कौन सा एरिया में ड्रिप लगाऊं, कौन सा कहाँ क्या करूं। ये सारी चीजें के लिए लाइन डिपार्टमेंट से भी आप बात कर रहे हो, मुझे मालूम है। बट मैं थोड़ा एसपीएमयू से सुनना चाहूंगा, जो तिवारी जी बता रहे हैं कि प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है, क्या कंस्ट्रेंट है, क्या हम आपको कोई सहायता कर सकते हैं, या कोई भी इस तरह का हम आपकी सहायता कर सकते हैं जिससे आपको इन सब चीजों के लिए हम टेक्निकली कॉम्पिटेंट बना पाए। एसपीएमयू से मैं ये सुनना चाहता हूं। हमारा प्रश्न ये है, एक सुझाव है कि इस विषय में ब्लॉक स्तर पे जो इंजीनियर्स हैं जो कार्य प्रपोज कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको ये प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि एक्यूफर के अनुसार ही जो स्कीम है उसका प्रस्तावित करें। जैसे कोई स्टॉप डैम, चेक डैम वगैरह बना रहे हैं, एक्यूफर को पहले वेरीफाई कर लें कि यहाँ बनाना क्या उचित रहेगा अथवा नहीं रहेगा। उसको वेरिफिकेशन के बाद ही प्रस्तावित करें। तो इसको जिला स्तर पर एक कार्यशाला होना चाहिए, ये हमारी मांग है। नहीं, अभी जो वर्तमान में रनिंग वर्क है उनकी बात कर रहे हैं। साइट सिलेक्शन तो ठीक है, लेकिन अभी जो रनिंग वर्क की स्थिति बात बता रहे हैं आप, क्योंकि ये कन्वर्जेंस वाले स्कीम है, जो रनिंग वर्क है, रनिंग वर्क में क्या हो रहा है कि ये भी ग्राम पंचायत स्तर पे जैसे जो जो काम प्रपोज किए जा रहे हैं या रनिंग वर्क है, उनके जो एक्यूफर को नहीं देखा गया है कि किस तरह का एक्यूफर है, यहाँ पर स्टेटा किस तरह का है, किस तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो ये थोड़ा सा नहीं तिवारी जी, मुझे लग रहा है हम डेविएट कर रहे हैं कहीं। देखिए, बात हो रही है हमारे वाटर सिक्योरिटी प्लान की। अगर हमारा वाटर सिक्योरिटी प्लान साइंटिफिक प्रोसेस की तहत बना हुआ है, कौन मनरेगा में क्या हो रहा है, आईडब्ल्यूएमपी में क्या हो रहा है, उस पर कमेंट करना हमारा काम नहीं है। हमने अगर सही करा है और मनरेगा अगर कल बोलता है कि नहीं जी हम यहां नहीं करेंगे, तब ये मुद्दा उठता है। उस समय में हम सीजीडब्ल्यू भी बैठा है, वहां पे मंत्रालय बैठा है, हम इंटरवीन करेंगे। आप तो अपना प्रोसेस फॉलो करें, ये मेरा अनुरोध है। और कौन क्या कर रहा है उससे हमको अभी कोई लेना देना नहीं है। जब कन्वर्जेंस की बात आएगी, कन्वर्जेंस होगा, इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, उस समय डीपीआर बनेगा, वो उस समय की बात है। आप अपना प्रोसेस फॉलो करते रहो, ठीक है? ठीक।
or any issue which you would like to, because we are left with only 5 to 10 minutes now. आज के डिस्कशन से जो निष्कर्ष ये निकल के आना है वो मैं आपको एक बार ब्रीफ करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर किसी भी डीआईपी, डीपीएमयू या एसपीएमयू के लोगों को कोई भी ऐसा क्लैरिफिकेशन चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि दोबारा ऐसा मौका शायद ना मिले, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस बीच में हमको करेक्टिव मेजर सारे लेने हैं। तो आप अपनी एक सबसे बड़ी असुविधा मैं समझ चुका हूं कि आपका ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, जो फरवरी तक आपका आचार संहिता चलेगा, इसलिए मीटिंग्स के बारे में आपकी थोड़ी सी कंस्ट्रेंट है। वो मंत्रालय तक भी ये बात जा चुकी है, उसका हम कोई प्रावधान निकालने जा रहे हैं। उसके अलावा बताएं आप। सर मैं निवाड़ी से सर, पन्ना से निवेदन बात कर कर रहा रहा हूँ था सर। सर धर्मेंद्र ठाकुर निवाड़ी से निवेदन कर रहा था सर। हाँ, सर जैसे डेट नहीं डल पाई या ग्राम पंचायत के लोग इतने जानकार नहीं है कि वो साइन करते समय डेट डाले, तो इस पर कुछ हो सकता है तो सर प्लीज सजेशन। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं क्या हो सकता है, क्या करेक्शंस किया जा सकता है, इसका डिसीजन मैं नहीं ले सकता। ये एक कंसोलिडेटेड डिसीजन होगा जब सारे स्टेट का वर्कशॉप हो जाएगा और वो हम आपको सूचित करेंगे ऑफिशियली, ठीक है? आगे बताएं। पन्ना से बात कर रहा था सर। हाँ बताइए। हमारे यहाँ जो सप्लाई साइड और इंटरवेंशन साइड के संबंध में सर हम बात करना चाहते हैं सर। हमारे यहाँ सर जो ये इंटरवेंशन किए गए हैं सर ग्राम पंचायत स्तर पे, जो लाइन डिपार्टमेंट है उनके विभागों के जो ग्रास रूट के मतलब ऑफिसर्स हैं और वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी, उनके साथ बैठ के प्लानिंग की गई है सर। फिर जब हम सर डीपीएमयू लेवल पे मीटिंग करते हैं सर, तो कलेक्टर सर भी एक चीज की सर देखते हैं कि ये प्रावधान हम अपने मत से कहाँ कर सकते हैं, इसका पैसा कहाँ से आएगा, कन्वर्जेंस के संबंध में जब बात आती है सर, उसकी सर हम लोगों ने जो प्लानिंग ग्रास रूट पे की है सर, वो हम लोगों ने खाली अकेले नहीं किया सर, उसमें विभागों को भी इन्वॉल्व करके और उनके जो हेड वगैरह है जिसमें पैसे का प्रावधान रहता है सर, वो सब चीजें हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से की हुई है सर। और उसका सत्यापन सर डीपीएमयू लेवल पे कलेक्टर सर भी करते हैं सर। और हमारे यहाँ तो सर मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि आप नहीं कर रहे, मैं बोला आप इसको दोबारा इंश्योर कर लो। मैं आप लोगों से कई बार मुखातिब हो चुका हूं, बात भी कर चुका हूं, आपके यहाँ जा भी चुका हूं, मुझे मालूम है। मैं फिर भी एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इंश्योर करें कि प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, दैट्स ऑल। आप क्या कर रहे हैं वो मुझे भी पता है और आपको बताने की जरूरत नहीं है। केवल आपको बार बार अनुरोध है कि कल को ये मुद्दा ना उठे कि नहीं जी आपने कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया, आपने कंसल्टेशन नहीं करा, आपने टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं देखा और आपने स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिया। तो इसलिए वो मैं समझ रहा हूँ आप लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जहां पे बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। आगे बताएं। और कोई बताना चाहते हैं कोई भी? हाँ जी, थोड़ा आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा तेज बता सकते हैं? इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप जो वाटर सिक्योरिटी प्लान बना रहे हैं, आप डीपीआर नहीं बना रहे हैं, आप प्लान बना रहे हैं। इस चीज को समझ लें। आप इस प्लान में आप स्ट्रक्चर का नंबर और टाइप बता रहे हैं। अगर आपने बोला कि मुझे नाला बंद बनाना है या आपको चेक डैम बनाना है, आप इस्टीमेट, जो कॉस्ट इस्टीमेट होता है वो स्टेट के शेड्यूल ऑफ रेट के हिसाब से एक स्टैंडर्ड डायमेंशन का एक कॉस्ट होता है, वही आपने लिया है। मेरे को जहां तक ख्याल है वही नॉर्मली सब लोग लेके एक एस्टीमेट बनाते हैं। बट जब ये काम आप किसी लाइन डिपार्टमेंट को सौंपेंगे कन्वर्जेंस में, वो लाइन डिपार्टमेंट का अपना तरीका होता है एग्जीक्यूशन का। कोई भी बिना डीपीआर के कोई भी टेक्निकल या इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तो जब ये बनाया जाएगा उस समय वो डायमेंशन भी लेंगे,
और तब वो एक्चुअल कॉस्टिमेट निकालेंगे। आपने तो एक प्लान में बताया कि फलाने ग्राम पंचायत में मुझे 120 करोड़ का प्रावधान होना चाहिए सप्लाई और डिमांड साइड के लिए, ठीक है ना। अब अगर ये इसमें से 5 करोड़ रुपया चेक डैम बनाने के लिए था, आपने दे दिया, सपोज मनरेगा को दे दिया आपने। अब मनरेगा इसको इंप्लीमेंट करने के लिए डीपीआर बनाएगा, आपसे अप्रूवल लेगा और तब जाके ये काम शुरू होगा। ये प्रोसेस है। तो आपका काम है प्लान बनाना। प्लान के बाद जब आपका इंसेंटिव यूटिलाइजेशन के लिए जब आप जाते हो तो कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट आपको एक प्रपोजल देता है जिसमें एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेट आएगा, ठीक है। और वो उसके बाद डीपीएमयू या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एसआईएससी लेवल पे अप्रूवल होता है। मेरा अनुरोध है आप लोग प्लान पे कंसंट्रेट करें और जो एस्टिमेट का सवाल उठता है वो शेड्यूल्ड रेट होते हैं हर स्टेट के, एक टिपिकल डायमेंशन का, उससे ही आगे बढ़े आप। और कोई क्लैरिटी चाहिए इसमें? हाँ जी, तो यही मैं बता रहा हूं आपको, राइट। हाँ। इसके बारे में मेरा एक सुझाव है, यहाँ पे एसपीएमयू में जो लोग बैठे हैं उनसे एक सुझाव है। सीजीडब्ल्यूबी ने एक मास्टर प्लान बनाया है जिसमें ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट स्तर पे किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा और उसका कितना कॉस्ट होगा, ये भी निकाला गया है। मेरा अनुरोध है काइंडली उस कॉस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं और रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि वो जो कॉस्ट निकाले गए हैं वो स्टेट के साथ मिलके निकाले गए। हर टाइप के स्ट्रक्चर का एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है उस रिपोर्ट में, मास्टर प्लान में। मेरे ख्याल से सुभाष सिंह साहब से मैं खास करके रिक्वेस्ट करूंगा कि सर काइंडली वो मास्टर प्लान आप सीजीडब्ल्यूबी से ले लें और उसको जरूर इस्तेमाल करें कॉस्ट एस्टिमेट के लिए, क्योंकि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉस्ट है। नहीं वो है अवेलेबल, ठीक है। तो जाने दो ना यार, आप तो एस्टिमेट, देखिए आप बात समझो, एस्टिमेट एक एस्टिमेट होता है, एक अंदाजा होता है जिसको बोलते हैं मोटा मोटा मुझे इतना पैसा चाहिए या इतना पैसा खर्च होगा। योर जॉब इज इन द वाटर सिक्योरिटी प्लान टू गेट ए एस्टिमेटेड कॉस्ट। डोंट गो बाई दी मनरेगा, डोंट गो बाई दिस दैट। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेसी में आप जाएंगे तो आपके लिए भी प्रॉब्लम है, दूसरे के लिए भी प्रॉब्लम है। आप एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी दे सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें, ठीक है। और बताएं। मेरे ख्याल से अब 12 बजने वाले हैं। अगर आपके और कोई सवाल नहीं, क्योंकि हमारी दूसरी भी मीटिंग है अभी सेकेंड हाफ में, तो अगर सारी चीजें क्लियर है तो मैं 1 मिनट लूंगा ये ब्रीफ करने के लिए जो हमने डिस्कस करा। उसमें सबसे पहला चीज तो हमने सारे वो फिल्टर्स जिसके बेसिस पे आपके 189 वाटर सिक्योरिटी प्लान को डिस्क्वालीफाई किया गया या फिल्टर के थ्रू रिजेक्ट किया गया, वो सारे हमने 1 to 1 आपसे डिस्कस करे हैं। और उसके अगेंस्ट में हमने आपको अनुरोध किया है कि अब आप समझ चुके हो, आप खुद रिविजिट करो हर वाटर सिक्योरिटी प्लान। तो ऑल डीपीएमयूज में रिविजिट देयर प्लान टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या करेक्शन होना चाहिए। और अगर वो एडिटोरियल करेक्शन है तो आप हमें बताओ कि सर इस पूरे में से, इस डिस्ट्रिक्ट में से 50 में से 40 में तो सिर्फ एडिटोरियल करेक्शन की बात है जिसमें नंबर नहीं लिखे हैं, जिसमें डेट नहीं लिखे हैं, और कई ऐसे हैं जिसमें ये पूरा प्रोसेस फॉलो होना है पीछे, जो अभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी ग्राम पंचायत हमको नहीं है।
ये एक्सरसाइज आप अपने पास करके रख लें। हम आपसे दोबारा मुखातिब होंगे एक डिसीजन लेने के बाद यहाँ पे कि हम अगला स्टेप क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि और कोई बात हमने करी है। जिन मुद्दा ही आज यही था कि हम समझना चाह रहे थे कि क्या इश्यूज हैं वेरिफिकेशन के। वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। अब इसके अलावा और कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं आप प्लीज बता दें। अगर हाँ, जैन साहब, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। हाँ सर जी, आपका सुझाव नहीं जैन साहब, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे अभी क्यूसीआई से भी। बट थोड़ा सा मेरा एक अनुरोध इसमें है कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूसीआई को देना भी उचित नहीं है। हम लोग टेक्निकल लोग हैं, हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, कुछ जिम्मेवारी हमारी भी है। तो वो एक अलग मुद्दा है। बट जो आपका सुझाव है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और जैसा जो भी डिसीजन होता है आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू।